Am I audible? Yes, sir. Okay. So today we will do, let's discuss assignment first. Just share your screen. Just anyone having any doubt in the loop and the defining function assignment, just share your screen and then you can ask your doubts. Yes, please. Yes. If you have any doubt, then you can ask. Anyone having any doubt in the assignment of loop and the defining function, then you can ask. Just share your screen and just tell. No doubt. अगर आपको कोई डाउट है लूप्स एंड डिफाइनिंग फंक्शन में तो आप पूछ सकते हो, अपना स्क्रीन शेयर करो एंड देन मुझे डाउनलोड करने पड़ेंगे पहले असाइनमेंट. वेट. Now is my screen visible to all? Yes or no? Yes, sir, visible. Yes. Just tell me which question. First is easy. ये तो हमने क्लास में किया है. Write a program to print Marilyn prime numbers in between 20 to 70. Any doubt in this question? Anyone? क्या हुआ? Yes or no? If you have any doubt, then yes. Then say no if you don't have any doubt. Please respond yes or no.
नो सर, मेरे को नहीं है. Everyone, kindly please respond fastly. Maybe. Second, it's again simple question. Anyone having any doubt in question number second? No No? doubt, sir. Question number three, it's very easy. No doubt. Question number four. Yes, question number four. Done. Question number five. Again, it's easy. Sir, can I know the? Am I audible, sir? Voice is cracking. Akshita. Yes, please. Okay. So, sir, I want to ask that what will be the expected output of the fourth question? Okay. You will Will get, it be 2, 3, 4, 5, 6, 7 and whole of the list, or it yeah, will be like the list will also be broken down? 4, 5. It's in the form of 1, 2, 3, 4, 5. Means there is a nested list, but you have to print all the elements. So you Okay. have to write a code in which you have to print all the elements individually. There is no such kind of nested part. Because let's suppose if Understood. you are printing for I in Y and print I, so maybe up to the 7 it will print individual elements. After that it will print whole list. Whole list, yes. So you have to make your loop through which you can just print your all the elements one by one. Okay. Now question number, it's easy. You have to just put the formula A equals to P multiply 1 plus R of 100 to the power n. It's simple. So write a program to enter in compiler will tell. Again, it's very simple, odd or even. Write a program to that asks a cuisine. It's again question number. This one cuisine one. I hope so. Done. Yes, sir, done. Please check which one. Anshita is okay. Yeah, definitely. Your code is right. Anshita. Write a program to enter a number in compiler will tell. Again, it's easy. Write a program divisible by 2 and 3. Easy. Write a program that prints vowels. ये तो हमने क्लास में किया था, ठीक है? You have to just make a list of vowels. Write a program that tells how many liters of milk. Again, this one is again easy. Write a program to print month number and expenses and then in the end print total expense. ये तो हो गया होगा. It's easy again. मुझे बता देना डाउट किस में है. And then write a program to figure out the count for hat after flipping a coin. तो ये भी इजी है, आपको बस एक hat पे रखना है and then you have to make a counter. By the help of the counter, you just do it. Write a program that asks you enter in expenses. Okay. ये क्वेश्चन किसने किया? This one. Sir, I have done it, but वही expected output नहीं आ रहा था. शो करो अपना स्क्रीन मुझे. Yes, please. Okay, sir, let me just. Yes, Sadin. Tell me. इसका सर नहीं किया, हाँ. ये वाला नहीं किया. Okay. Wait, I'm just stopping my screen. Yes, please share your screen. Which one? Okay. Yes, done. Anshita, there's a while true. Okay. A in a monthly expense. Okay, count A I monthly dot index A. Again there is a problem. अगर उसमें रिपीटिशन आएगा then again वो आपको जो मंथ दे रहे हो आप उसमें मंथली एक्सपेंसेस डॉट इंडेक्स ऑफ ए, ठीक है? तो वो क्या करेगा फिर, वो रिपीटिशन के लिए आपको वैलिड नहीं रहेगा. Then you have to think about without the help of the indexes because there is a problem with the indexes. अगर उसमें repetitions आ रहे हैं तो again वो problem create करना शुरू कर देगा, ठीक है? तो for this part you have to think differently, but maybe you can say that particular logic is correct, but the thing is that you have to think differently if you maybe in your data having some kind of
repetitive values, then that particular code won't work. Yes. Let's see. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं वो देखते हैं. I'm just sharing my screen. Don't worry. मेरे पास एक मंथली एक्सपेंसेस का लिस्ट है. I just copy that list. ये मेरे पास एक लिस्ट है. तो यानी मेरा प्रोग्राम क्या है, दैट आस्क्स यू एंटर एन एक्सपेंस अमाउंट. ठीक है, यानी मैं उसे एक अमाउंट दूं और वो मुझे क्या बताए, शुड टेल यू द मंथ इन विच दैट एक्सपेंस अकर्ड, यानी किस मंथ में वो एक्सपेंसेस हुए हैं वो मुझे बताना है. इफ एक्सपेंसेस इज नॉट फाउंड देन कन्वे दैट, यानी अगर एक्सपेंसेस नहीं है तो वो मुझे बता भी दे कि ठीक है नॉट फाउंड. ठीक है, सिंपल. तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइट्रेशन में जाना पड़ेगा. यानी आइट्रेशन, लेट्स सपोज मैंने कहा ओके फॉर आई इन रेंज ऑफ, एंड देन रेंज ऑफ विच वन, सिंपली मंथली एक्सपेंसेस. ठीक है, वो क्या करेगा, मुझे एक सिंपल से आई के लिए आइट्रेशन दे देगा. यानी 0 1 2 3 4 के लिए मुझे एक आइट्रेशन दे दी उसने. जब मैंने उसे कहा ठीक है मेरे पास एक रेंज है, लेंथ है, और कहाँ तक है, अप टू n-1 तक. ठीक है, सिंपल. मैंने इसे फॉर आई इन रेंज का. अब मुझे क्या चाहिए, एक यूजर इनपुट चाहिए. ठीक है, तो यूजर इनपुट मीन्स दैट आप उसे क्या दोगे, एक वैल्यू दोगे. सिंपल. तो ठीक है, हमने यहाँ पे इसे एक इनपुट ले लिया. आई सेड यूजर इनपुट. ठीक है, एंड इनपुट क्या लिया, मैंने उसे एक वैल्यू लिया. ठीक है, इनपुट सिंपल एंटर योर अमाउंट. ठीक है, मैंने सिंपल इसे कहा इनपुट ले लो, एंटर योर अमाउंट. अब मुझे पता है इनपुट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग्स देता है. बट मुझे यहाँ पे मेरी सारी वैल्यूज कैसी हैं, न्यूमेरिकल. तो मुझे उसे देना पड़ेगा, यानी उसका डेटा टाइप चेक करना पड़ेगा. यानी मुझे उसे बोलना पड़ेगा कि अब मैं कैसा इंटीजर टाइप में जाके चेक करूँ. ठीक है, मेरे पास यूजर इनपुट आ गया, मेरे पास इंडेक्सेस आ गए 0 1 2 3 करके. मैंने कहा ओके, अपने कोड से कहा क्या करो, इफ यूजर इनपुट, यानी मेरा जो इनपुट है सिंपल, कौन सा जो मैं उसे दे रहा हूं, यानी लेट सपोज 23,000 दिया या 21,000 दिया, जो भी मैंने उसे दिया सिंपल, वो मैंने पूछा नॉट इन सिंपल मंथली एक्सपेंसेस, क्योंकि वहीं पे मेरे वो है मंथली एक्सपेंसेस. अगर जो यूजर इनपुट मैं दे रहा हूं वो अगर नहीं है तो सिंपली वो क्या करे, प्रिंट करे. क्या प्रिंट करे, नॉट फाउंड. सिंपल. ठीक है, और क्या करे, ब्रेक कर दे. यानी एक जो भी इनपुट दूं मैं, वो जाए मंथली एक्सपेंसेस पे और देखे वहां पे है क्या नहीं है. अगर नहीं है तो सिंपली उसे ब्रेक कर दे, और अगर है तो क्या करे, एलिफ. सिंपल, मैंने कंडीशन लगाया, क्या एलिफ का क्या कंडीशन लगाया, मेरा यूजर इनपुट, जो भी मैं यूजर इनपुट दूं वो क्या करे, एग्जैक्टली इक्वल्स टू मेरे किससे, मंथली जो एक्सपेंसेस है उसके आई से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, उस पर जाए और चेक करे जा जाके. अगर वो है तो सिंपली मैं क्या करूं, प्रिंट करूं. क्या प्रिंट करूं, अपना मंथ से एक्सपेंसेस. ठीक है, परटेनिंग टू सिंपल. अब वो किसके अकॉर्डिंग, मेरे मंथ के अकॉर्डिंग. यानी मंथ के अकॉर्डिंग मुझे एक मंथ का क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे वो जा जाके वहां पे देख सकता है. I can say this one, and then if I just create a list of months, तो months को क्या कर सकते हैं हम, this one, month Jan. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ. then Feb, then is March, April, then May, then June, then July, then August,
ठीक है, ये मेरा मंथ का लिस्ट हो गया। तो अगर वो मुझे मिलता है तो डेफिनेटली वो क्या करे, उस मंथ पे मुझे बता दे। ओके, तो मैंने कहा ओके क्या करो, यानी ये मंथ है, ठीक है, तो मंथ पे मुझे आई से मिल रहा है, यानी 012 उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो मैंने कहा ओके डेफिनेटली देयर इज अ आई, सिंपल। तो मैं यूजर इनपुट भी ले लूंगा, उससे बता भी दूंगा, चेक भी कर लूंगा कि वो अगर नहीं है तो प्रिंट नॉट फाउंड, ब्रेक कर दे। अगर है एलिफ यूजर इनपुट एग्जैक्टली इक्वल्स टू मंथली एक्सपेंसेस है, तो पहले वो गया, देन चेक किया, और फिर वो उस पे उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, सिंपल। क्या प्रॉब्लम था इसमें? यस सर Two इसमें months are having same number. या ओके, अबाउट दिस वन लेट्स सी, इसे पहले रन करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा विच इज 23,000, सो एक्सपेंसेस परटेनिंग टू जैन एंड नाउ, सिंपल। तो यू हैव टू क्रिएट दैट लॉजिक। अगर रिपीटेटिव वैल्यूज हैं तो भी आप उस पर क्या कर सकते हो, वैल्यूज को, क्योंकि वो आइटरेशन तो करता रहेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक मेरा लूप रन करेगा। सिमिलरली मैंने कहा ओके 34 6 7 8 9 नॉट फाउंड, ये एक्सपेंसिव फाउंड नहीं है, एंड देन यू कैन चेक फॉर एनी वैल्यू इस जुलाई। यस, गॉट इट, इट्स सिंपल। या एनीवन हैविंग एनी डाउट? क्या इशू आ रहा था? ओके वेट, आई हैव टू चेक अक्षिता फर्स्ट। What's your loop? Okay, monthly expenses, this one input दिया, ठीक है, for I, okay, then print break, okay, and then you have to print no such expense in this format, month name of this one, okay। अब अक्षिता जैसे आप क्या कर रहे हो, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जैसे ही आपने 23,000 का दिया, वो नेक्स्ट वाला 23,000 पे ब्रेक कर देगा, यानी वो Exactly. रिपीटेटिव वैल्यूज का नहीं देगा। तो Yes. हमें क्या करना पड़ेगा, क्या पहले हमें कंडीशन को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ केस ऑफ द रिवर्स कंडीशन, है ना। अगर आपने यहाँ पे उसे अगर वो फॉर लूप पे कनेक्ट कर दिया तो मीन से दैट वो तो ब्रेक कर देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी हमें उसे कंडीशन में देना पड़ेगा एल्फ। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन दिया, तो हमने क्या किया, उस कंडीशन को एलिफ में रखा, उस कंडीशन को, Okay. है ना। तो वहां पे आप करोगे तो डेफिनेटली आपके पास वो आइटरेट करता रहेगा, क्योंकि ब्रेक कंडीशन एसोसिएटेड है किससे, मेरे एक्सपेंसेस से। गॉट इट। तो जो आपने कोड किया है वो पार्शियली करेक्ट है, बट उसका लॉजिक रॉन्ग हो गया, क्योंकि रिपीटेटिव वैल्यूज अगर उसमें आ जाएंगे, जैसे मे बी इन द मंथ ऑफ जैन एंड आई थिंक नवंबर, तो उस मंथ पे वो नहीं देगा, आपको सिर्फ जैन का वैल्यू देगा, ठीक है। Okay, sir. Now come to the part. Okay, write a program that print the number 1 to, it's simple again. Anyone having any doubt in this part? किसी को डाउट है इस पार्ट में? ये हो गया ना? यस मुस्कान। सर इसके अंदर फिज हो गया था, बस हो गया था, फिज बस भी हो गया था, बट इसके अंदर ये प्राइम नंबर वाला समझ नहीं आ रहा था कि प्राइम नंबर वाली कंडीशन कहाँ जाएगी। बिकॉज 3 था वो फिज हो गया ना, तो वो 3 पे चेक करके फिज प्रिंट कर देता था, बट प्राइम नंबर वाला नहीं आ रहा था। ओके ओके, लेट्स सी। क्या करते हैं, सबसे पहले 1 to 100 है, तो हमें पता है कि 1 तो इज प्राइम नंबर, तो एक कंडीशन लेते हैं विच इज स्टार्ट फ्रॉम द 2 एग्जिट डायरेक्टली। तो लेट्स सी फॉर आई इन रेंज, सिंपल, मैंने कहा ओके फॉर 2 to 101, ठीक है, 100 तक जाएगा। 1 तो इटसेल्फ है प्राइम नंबर, तो हम उसे 1 भी ले सकते हैं इफ मुझे कंडीशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। इफ आई ग्रेटर देन 1 तब उसके नीचे लूप लिखना, तो मैं सिंपल 2 से ले रहा हूँ। तो मैंने इससे पहले क्या किया, मुझे कंडीशन चेक करना है, ओके राइट अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो प्रिंट फिज करे, राइट अ नंबर एंड द मल्टीपल ऑफ 5 बस, ओके, एंड 3 and 5 मल्टीपल है तो फिज बस, ओके, इंस्टेड ऑफ ओनली प्रिंटिंग बिल फिज बस एंड द फोर्थ स्टेटमेंट प्रिंट, ओके, प्राइम आल्सो। तो यानी मुझे ये प्राइम भी बताए, अगर वो फिज है तो फिज भी बताए, अगर वो बस है तो बस भी बताए, और अगर वो फिज बस है तो फिज बस भी बताए। तो हम क्या कहते हैं, ओके लेट्स सी, there is a 2 and 100, okay, and there is a condition which is related to this one। तो okay, मैंने कहा for j
इन रेंज ऑफ, यानी सबसे पहले हम लोग प्राइम के लिए ही चेक कर लेते हैं, और प्राइम में अगर चेक कर लेते हैं तो मेरे पास एल्स ब्रेक करके एल्स लूप में जाके फिर देन कंडीशन चेक करते हैं किसका, फिज बस का एंड फिज बस का, ठीक है, ओके ग्रेट। तो ओके दिस इज अ कंडीशन। तो मैंने कहा ओके फॉर JN2, यानी क्या कर रहा हूँ मैं, लूप में ही उसी में रन कर रहा हूँ, यानी सबसे पहले मैं प्राइम के लिए कंडीशन चेक कर रहा हूँ, और अगर ऐसा है तो इफ आई ऑफ मॉड्यूलो, हेलो सर। यस नदीम, सर मैंने कुछ भेजा है सर, जैसे कि मैंने कुछ लिखा है, मतलब इसका सॉल्यूशन मैंने किया है सर, देखेंगे सर ये सर करेक्ट। बट इट इज नॉट फॉर प्राइम। आपने जो कंडीशन लिखा विच इज वो आपको फिज बताएगा, बस बताएगा एंड फिज बस बताएगा, प्राइम नहीं बताएगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये पूज्यते का है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वेट 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 वेट, अक्षिता, मैंने ऊपर ऊपर लिखा हूँ सर, या इसका अक्षिता, साइज सर। ग्रेट ग्रेट, विच वन, आपका ओके दिस वन फॉर आई, या सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट, सर ग्रेट एक्चुअली ग्रेट जो सॉरी। मैंने कोड लिखा है उसमें वो 3 की जगह पे लाइक इट इज नॉट प्रिंटिंग प्राइम, विच वन? जो मैंने कोड लिखा है अभी। सो वो हाँ पूजित, आपने क्या किया ना, वो जो कंडीशन है, जो कंडीशन दिया उसमें आपने कंडीशन किसका नहीं दिया, प्राइम का नहीं दिया। नहीं नहीं सर, वो ना सर अक्षिता पूछ रही है पहले तो, और मेरे सॉरी इसमें ये सॉरी सॉरी सॉरी। प्राइम की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अगर मैं प्राइम डालती हूँ लास्ट में इफ एल्स में, तो वो क्या कर रहा है, नंबर तो दे रहा है लेकिन ना 100 से मतलब रिपीटली नंबर दे रहा है मुझे। ओके ग्रेट, एक वेट वेट, पहले मैं अक्षिता का आंसर, अक्षिता हाँ इसमें आप, जी। हाँ ये जो आपने किया है ये, तो Yes. फॉर JNA इसमें आपने ये फॉर आई इन रेंज 1 to 100 नीचे क्यों लिया, देयर इज नो सेंस। सर ऊपर तो डिफाइनिंग फंक्शन किया ना, एक फंक्शन बनाया प्राइम, प्राइम का अलग कर दिया बिल्कुल। नो नीड टू डिफाइन फंक्शन, जस्ट सिंपली जस्ट डू बाय द हेल्प ऑफ, सबसे पहले क्या करो, फॉर आई इन रेंज करो 1 to 100, इफ आई इज ग्रेटर देन 1 देन यू हैव टू राइट अनदर कंडीशन फॉर J in रेंज 2 to I, क्योंकि अगर वो इस कंडीशन में जा रहा है, अगर आप उसे A दे रहे हो, यू आर नॉट चेकिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू, यू आर चेकिंग द होल रेंज, ठीक है। तो अगर आप डिफाइन प्राइम A दे रहे हो तो सबसे पहले वहीं पे आपने गलती कर दी, क्योंकि इसलिए गलती किया क्योंकि वहां पे आपको A, B देना पड़ेगा, देन यू हैव टू डिफाइन योर J इन रेंज ऑफ A, B, देन यू कैन जस्ट डू इट अवे। स्वाधीन का क्वेश्चन मे बी जे ब्रेक ब्रेक किया, एल्स किया, प्राइम आ गया, ठीक है स्वाधीन, हाँ आपका लॉजिक सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ग्रेट। सर यहाँ पे मैंने जो लॉजिक लगाया सर सबसे डिफरेंट रहेगा, क्योंकि सर यहाँ पे मैंने फर्स्ट प्राइम से ही लिया, प्राइम नंबर जो है जैसे कि 2,101, तो मुझे जितना समझ में आया वो किया हूँ सर, सबसे डिफरेंट रहेगा, बट क्या रहेगा थोड़ा देखिए सर, इट्स करेक्ट और नॉट थोड़ा। तो मैं सब करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि प्राइम नंबर आपने चेक किया सबसे पहले, ठीक है, फिर देन इफ कंडीशन प्रिंट फेस बस, ग्रेट, एलिफ, डेफिनेटली ग्रेट, सही है, कोड आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि देयर सर यू हैव टू क्रिएट दैट फॉर एल्स, इट्स अ केस ऑफ द फॉर विद द नेस्टेड कंडीशन ऑफ फॉर एंड द लूप इज एल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो लेट्स सी, देखते हैं ऐसे, ठीक है, तो वेयर इज माय कोड, दिस वन, ठीक है। तो मैंने कहा ओके इफ आई इज जे एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, देयर इज अ कंडीशन, अगर ऐसा है तो क्या करो, सिंपली ब्रेक कर दो उसे, और अगर आप ब्रेक कर दो तो क्या करो, मेरा प्राइम का कंडीशन एल्स प्रिंट सिंपल आई, और यू कैन से दैट नंबर और कॉल इट प्राइम, ये कंडीशन दिया, एंड देन यू हैव टू चेक फॉर अनदर कंडीशन, अगर वो प्राइम है तो उसके बाद फिर वो चेक करना शुरू करे, किसे चेक करना शुरू करे, फिज को, बस को एंड फिज बस को, तो इट्स सिंपल अगेन, देन यू हैव टू राइट दैट कंडीशन इन द एल्स पार्ट, कि अगर एल्स है तो वो क्या करे, आई modulo of 3, you can say this modulo of 3 exactly equals to 0, and simple, you can just take that condition, I modulo of this one 5 exactly equals to 0, अगर ऐसा है तो आप उसे कंडीशन दे सकते हो, ठीक है, क्या कंडीशन दे सकते हो, फिज एंड बर्ड कंडीशन दे सकते हो, अगर वो दोनों हैं तो आपने ये कंडीशन दिया, सिंपल, एंड देन यू हैव टू राइट I, and then
फिज प्लस, सिंपल। इसी तरह आप बस अब आपको क्या करना है, कंडीशन देना है। देयर इज अ एलिफ कंडीशन, एलिफ कंडीशन अगेन, एलिफ कंडीशन के अंदर कोई कंडीशन दो, देन अगेन यू हैव टू राइट एलिफ कंडीशन, देन इसके अंदर एक कंडीशन दो, एंड फिर वो क्या करे, अगर ऐसा है यानी एक भी कंडीशन नहीं हो रहा है, कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको प्राइम नंबर, अब इसमें कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो प्राइम नंबर होंगे, फेज होगा, बज होगा, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होंगे जो शायद प्राइम भी नहीं हो, या कुछ ऐसे नंबर नहीं तो कंटिन्यू करता रहे, तो देन यू हैव टू गिव दैट कंडीशन कि आप उसे बाद में भी चेक कर सकते हो, देन एल्स, और उसे क्या करो, कंटिन्यू करो, देयर इज अ कंडीशन। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। यू हैव टू राइट योर कोड इन दिस वे, तो आपके पास सारे आंसर्स आपके आ जाएंगे। गॉट इट? सर मेरे को बस एक चीज पूछनी थी कि इसमें हमें जे का यूज करना ही पड़ेगा, विद आई वी कैन नॉट फाइंड प्राइम? या डेफिनेटली, ओके। क्योंकि आपको एक प्राइम क्या है, जो इससे नंबर से डिविजिबल हो, तो वो चेक करना पड़ेगा। अगर वो जो नंबर ले रहे हो आप लूप के अंदर, वो अगर आप नहीं लोगे तो वो डिविजिबल पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि अगर लेट्स सपोज 2 है तो 2 का डिवाइड 2 से ही होगा, वही प्राइम है। 5 है तो 5 से होगा तो ही प्राइम है। 7 है 7 से होगा तभी प्राइम है। तो यू हैव टू चेक दैट कंडीशन फर्स्ट कि अगर वो प्राइम है, ठीक है तो ठीक है, अगर प्राइम के बाद फिर देन यू हैव टू चेक द कंडीशन। गॉट इट मुस्कान? लॉजिक? यस सर, वो मेरा थोड़ा सा गलत था बस। चलो, दिस सर क्वेश्चन, ये वाला कैमल कैमलिन वाला मेरे से हुआ ही नहीं। ओके, किससे हुआ ये क्वेश्चन? किसने किया? एनीवन? सर मैंने किया है सर। ओके, क्या किया? क्या किया? which one? Okay, for I in, okay, again there is a index, okay। अगर इसमें रिपीटेटिव आ गया अंशिता, अगर इसमें रिपीटेटिव आ गया तो क्या करोगे? कैमल, देयर इज अ मिस्टेक स्वाधीन, इसमें एक छोटा सा मिस्टेक है, एक छोटा सा मिस्टेक है, उसे करेक्ट करो। सर जैसे कि रेंज में मैंने लगाया कि स्टेशनरी के हिसाब से हम्म फॉर आई इन रेंज हम्म एलियन एंड स्टेशनरी, इसका हम्म। कोड रन किया तो फॉर जे इन रेंज एलियन स्टेशनरी आई का ये मैं इसमें मिस्टेक है, अगर क्वेश्चन देखोगे तो देयर इज अ मिस्टेक, स्मॉल मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक कैपिटल कैमल है, एक स्मॉल कैमल है, एक कैपिटल कैमल है, ये भी कैपिटल कैमल है, तो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे? सिंपल, लेट्स सपोज फॉर आई, किसमें, इन रेंज ऑफ, किस में करोगे आप, लेंथ की स्टेशनरी में। जस्ट प्लीज म्यूट, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक लिस्ट दिया, सिंपल स्टेशनरी लिस्ट दिया इसे, एंड देन वो जो स्टेशनरी आप लिस्ट दे रहे हो, ठीक है, वो क्या करेगा, आपको 0 1 और 2 इंडेक्स का लिस्ट दे देगा, देयर इज अ 0 1 2 या सेकंड इंडेक्स का। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये लॉजिक समझते हैं, इसमें करना क्या है आपको। मेरे पास स्टेशनरी है, अब स्टेशनरी में मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स पे पेंसिल इज पेन इज कैमल, ठीक है, एंड अगेन इज अ पेंसिल बॉक्स, ठीक है। मैं सारे वो एलिमेंट्स नहीं लिख रहा। देन 5 10 अगेन इज अ कैमल, ठीक है, कैमल कैसा है इसका, स्मॉल में 20, देन देयर इज अ कैमलिन इज गो टू माय कैमल, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यू हैव टू रिप्लेस ऑल द कैमल विद कैमल, यानी कैमल्स को रिप्लेस करना है, जितने भी कैमल्स आ रहे हैं इसमें सबको रिप्लेस करना है किससे, कैमल से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पे जाऊंगा स्टेशनरी पे,
ठीक है, इसके 0 इंडेक्स पे वर्क करूंगा, स्टेशनरी के 0 इंडेक्स पे, और देखूंगा कि इसके 0 इंडेक्स पे किस इंडेक्स पे मेरे पास क्या आ रहा है, कैमल आ रहा है। अगर कैमल आ रहा है तो उसे रिप्लेस कर दो किससे, कैमलिन से। तो यानी मैंने कहा ओके, लेट्स सपोज I'm just writing in this way, तो मुझे क्या लॉजिक यूज करना पड़ेगा, सिंपल, फॉर आई इन स्टेशनरी, लेट सपोज स्टेशनरी किसका, यानी इसका 0 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे, क्योंकि मुझे इस पे आइट्रेशन करना है, 0 इंडेक्स की लिस्ट पे आइट्रेशन करना है, देन फर्स्ट इंडेक्स की, देन सेकंड इंडेक्स की लिस्ट पे आइट्रेशन करना है, सिंपल। जब मेरे पास आई में क्या आ जाएगा, 0 इंडेक्स, यानी 0 1 2, 0 1 एंड 2, मेरे पास ये आ गया 0 1 2। अब मैं क्या करूं, सिंपल, यानी एक और लूप क्रिएट करते हैं जो क्या करेगा, मेरे इस लिस्ट के अंदर जाके वर्क करेगा। कौन सी लिस्ट के अंदर जाके वर्क करेगा, जो मेरे किस में है, 0 इंडेक्स की लिस्ट में है, ठीक है। तो हो, मैंने कहा ओके फॉर जे इन स्टेशनरी, ठीक है, यही मेरी क्या है, स्टेशनरी है, सिंपल। तो मैंने कहा इस पे क्या करो, आई, यानी पहले 0, तो ये जे क्या हो जाएगा, जितने भी यहाँ एलिमेंट्स होंगे फॉर दिस वन, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि ये हो सकते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4, है ना, डिफरेंट डिफरेंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 0 इंडेक्स के फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ स्टेशनरी st, ठीक है, देन फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ स्टेशनरी ऑफ आई, ये फर्स्ट आइट्रेशन में 0 होगा, एंड देन जे में 0 1 2 3 4 उसके अंदर आइट्रेशन हो जाएगी, फिर ऐसे लूप चलेगा, यानी लूप वर्क करेगा इस लूप पे। तो मैंने कहा ओके, यस मुस्कान। सर इसके अंदर हमें लेंथ निकालने की क्या नीड है, अगर हमें ये वाला लॉजिक लगाना है तो मैं ऐसे कर सकती हूँ ना, फॉर आई इन स्टेशनरी और फॉर जे इन आई। ओके, हाँ डेफिनेटली यू कैन डू ऑल्सो, बट द सेम टाइम द प्रॉब्लम इज दैट कि आपने कहा फॉर आई इन स्टेशनरी, डेफिनेटली वो क्या करेगा, इस इंडेक्स पे आ जाएगा, एंड फॉर जे इन आई, डेफिनेटली आपने ये लॉजिक दे दिया, बट द थिंग इज दैट जे इन आई जैसे ही आएगा तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन में क्या आ गया, ये लिस्ट आ गया, पेंसिल पैन कैमल, पेंसिल बॉक्स कैमल स्केल, बट आपको अब ये नहीं पता कि जो कैमल है वो कौन किस इंडेक्स पे है। अब आप चेक करोगे इसमें, क्या आपने चेक किया, ठीक है, मैंने एक कंडीशन लगाई कि मेरे पास जे में जाओ और जे में चेक करो इफ जे एग्जैक्टली इक्वल्स टू कैमल, अगर वो कैमल है तो उसे क्या करो, कैमलिन कर दो। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हमें इंडेक्स नहीं पता कि हम उस किस इंडेक्स पे जाके वर्क करना चाह रहे हैं, किसके लिए वर्क करना चाह रहे हैं, इस पर्टिकुलर लिस्ट के लिए। अगर मुझे सिंपल, मैंने उसे कहा कि मेरे पास कैमल एक बार है, ठीक है, उसे रिप्लेस कर दो, देयर इज नो वरी, बट हो सकता है उसमें 2 हो 3 हो, तो उसके पर्टिकुलर पहले क्या है, उसी इंडेक्स पे जाओ और उसके उसी इंडेक्स पे जाके वर्क करो। तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, यानी जाके पहले वो क्या करे, 0 लिस्ट पे जाए, 0 के 0 एलिमेंट पे चेक करे यहाँ पे है, अगर है तो ठीक है उसे रिप्लेस करे, फिर अगेन 0 रहेगा, 0 पे 1 पे जाए, चेक करे है, ठीक है, देन 0 पे 2 पे जाए, चेक करे है, अगर है तो रिप्लेस करे, देन इस पे जाए, अगर है तो रिप्लेस करे, नहीं तो नहीं, इस पे जाए, चेक करे, रिप्लेस करे। तो ये आपको कंडीशन देना पड़ेगा, यानी इसीलिए क्योंकि आपको आइट्रेशन करना इंडेक्स वाइज, किसमें, उस पर्टिकुलर लिस्ट में। आप अगर आइट्रेशन नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, आपको प्रॉब्लम करेगा, प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपको ये, आपने कहा कि मेरे पास जे इन आई आ गया, डेफिनेटली जैसे ही जे करोगे आप तो आपके पास क्या है, वो 0 इंडेक्स का लिस्ट आ गया, यानी पेंसिल पैन कैमल, पेंसिल बॉक्स कैमल, आपने ये किया। अब आप जैसे ही जे आपके पास आ गया, ठीक है, तो आपने अगर कंडीशन लगाया कि अब लेट्स सपोज मे बी इफ कैमल इज इन आई और सॉरी इज इन जे और नॉट, तो डेफिनेटली वो फिर आपको ये नहीं पता आप किस इंडेक्स पे जाके आपको वर्क करना है। तो अगर आप रिप्लेस करोगे उसे तो डेफिनेटली यू कैन डू बाय द हेल्प ऑफ द डिफरेंट थिंग विच इज रिप्लेस वन, कि आप उसे जाके उसे रिप्लेस करो उस इंडेक्सेस पे जहाँ पे कैमल आ रहा है, तो अगेन वो चेक करेगा, वहां पे रिप्लेस करता जाएगा।
बट हम अगर उसके इंडेक्सेस पे वर्क करना चाहते हैं देन यू कैन डू बाय द हेल्प ऑफ द इंडेक्सेस आल्सो, क्योंकि मुझे इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 पे चेक करना पड़ेगा। देन फिर वो सेकंड जो पेरेंट लूप है उस पे जाएगा। अब आई क्या हो जाएगा 1, तो 1 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करेगा क्या 1 पे जाएगा, 1 के 0 इंडेक्स पे जाए, 1 के 1 इंडेक्स पे जाए, 1 के सेकंड इंडेक्स पे जाए, तो मुझे उसके इंडेक्सेस को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अनदर वे इज दैट देयर इज अ थर्ड वे आल्सो जो मैंने आपको कल बताया था, विच इज द इन्यूमरेट आल्सो, कि अगर आप नहीं चाहते क्या मैं इस तरह से नेस्टेड फॉर लूप पे वर्क करूं, देन यू कैन डू बाय द हेल्प ऑफ इन्यूमरेट आल्सो। अब उसे सोचना है कैसे इन्यूमरेट से कर सकते हो, यू कैन डू, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम आपको क्या है, इसके इंडेक्सेस के लिए प्रॉब्लम है। क्या ये जो प्रॉब्लम है, यानी आपको सिर्फ उसके इंडेक्सेस चाहिए। इंडेक्सेस यानी अगर आपको इंडेक्सेस मिल गए, क्या मेरे इस 0 लिस्ट में सेकंड इंडेक्स पे क्या है, कैमल है, यानी स्टेशनरी के 0 इंडेक्स पे अगर कैमल है तो आप वहां पे जाके क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कैमलिन को। यानी आपके प्रॉब्लम है सिर्फ इंडेक्सेस के, अगर इफ यू कैन फाइंड योर इंडेक्सेस देन यू कैन वर्क ऑन बाय द हेल्प ऑफ द लूप। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट योर लॉजिक इन दिस वे। तो आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू वर्क। गॉट इट मुस्कान? Yes, sir. Yes, sir. Okay, wait. Please try to run my code as it is giving the output as expected, also for the repetitive values. Okay, I have to check first. For I in stationary, a of stationary dot index. Okay, that is stationary dot index of I. Okay, ठीक है। पेंसिल का आपके पास इंडेक्स आ गया, पेन का आ गया, देन कैमल का आ गया, लेकिन 0 इंडेक्स पे जो कैमल आएगा उसका वो आपको इंडेक्स नहीं देगा, यानी वो आपको 0 1 2 ही देगा। तो आपके पास ए में जो है, आप उसे स्टोर कर रहे हो, विच इज अ फर्स्ट आइटरेशन विच इज रिलेटेड टू द पेंसिल, देन जे इक्वल्स टू स्टेशनरी ऑफ ए। ओके, यू हैव टू कॉल दैट इंडेक्स, then you have to store in the j if type of j exactly equals to list. Okay, then what you have written for b in the range of length of j. Okay, I don't think so. If b j of b exactly equals to camel, or okay, this condition is correct. So you have to put that camel. Okay, else continue kare. Okay, for this part, and then okay for अच्छा okay आपने else part पे continue किया, and then continue, and then else pass for this one with the condition else pass. Okay, yeah definitely, but the thing is that कि इसके पीछे जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक यू कैन से क्या वो एक बाई चांस वर्क कर रहे हैं, क्योंकि रीजन इज बिहाइंड दैट जब आप स्टेशनरी डॉट इंडेक्स पे वर्क कर रहे हो तो आपने वहां पे क्या किया, फॉर के संग एक एल्स पे आप कंडीशन पे वर्क कर रहे हो, तो वो एल्स कंडीशन में आपको पास भी करता जा रहा है। तो इसीलिए वो रीजन इज दैट कि अगर आप वहां कैमल है और दूसरा मेरे पास कैमल है, ठीक है, सबसे पहले आपने उसका इंडेक्स फाइंड आउट किया, तो इंडेक्स जब उसने स्टोर कराया विच इज रिलेटेड टू द योर कैमल, वैल्यू आ गया ए में, आपने उसे जे को स्टेशनरी के उस पर्टिकुलर वैल्यू को कॉल किया, यानी आपने पूरा वो लिस्ट ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, जो कैमल है, लेट सपोज जो आपका कैमल एक्चुअली जो है 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 ये 5th इंडेक्स पे है, बट सरप्राइजली क्या हुआ, यहाँ पे जो कैमल आया ना वो किस पे आया, 2 इंडेक्स पे आ गया। अगर यही कैमल आप हटा दो और 5th और 6th इंडेक्स पे वो कैमल ले जाओ, फिर उसको रन करना, आपको क्या करेगा, ये सिंपल रेंज आउट ऑफ इंडेक्स दे देगा। रीजन इज बिहाइंड दैट जैसे ही आपके पास ना, क्योंकि आप अभी कैमल पे वर्क कर रहे हो तो कैमल के लिए वो वर्क कर रहा है क्योंकि वो 0 1 2 पे आ चुका है। वहां पे स्टेशनरी ऑफ इंडेक्स जब आप आई कर रहे हो, ठीक है, आपने आई किया, ठीक है, तो वहां 0 1 2 आपके पास इंडेक्सेस आ गए स्टेशनरी के, क्योंकि वहां पे क्या कर रहे हैं, आपके पास 0 इंडेक्स का लिस्ट है, फर्स्ट इंडेक्स का लिस्ट है एंड सेकंड इंडेक्स का लिस्ट है, आपने उसके इंडेक्सेस लिए, ठीक है, उस लिस्ट के। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि काइंड ऑफ एक हिट एंड ट्रायल से आ गया
लेकिन द थिंग इज दैट कि अगर मुझे उसके डेप्थ में जाके वर्क करना पड़े तो अगेन वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप इंडेक्सेस ले रहे हो वो इंडेक्सेस एक लिस्ट के ले रहे हो, इट इज नॉट रिलेटेड टू योर एलिमेंट। जो आपके एलिमेंट है विच इज कैमल, वो नहीं है, वहां पे पूरे एक लिस्ट का एलिमेंट है। तो अगर जो मेरा कैमल है वो अगर सेकंड इंडेक्स पे है या मेरा वो कैमल फिफ्थ या सिक्स्थ इंडेक्स पे है, तो वो क्या करेगा, मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि मेरे हर एक हो सकता है हर एक लिस्ट की जो इंडेक्सेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आ जाए। तो आपने सिंपल क्या किया, स्टेशनरी ऑफ ए किया, तो जे में आपका सबसे पहले 0 इंडेक्स का स्टेशनरी, देन फर्स्ट इंडेक्स का इंडेक्स स्टेशनरी, देन सेकंड इंडेक्स का, देन आपके पास वो चेक किया कि वो लिस्ट है, और अगर लिस्ट है ठीक है तो लिस्ट में जाओ, उसके लेंथ पे वर्क करो, देन यू जस्ट चेकिंग दैट पर्टिकुलर 2 कैटेगरीज। तो ये लॉजिक इज करेक्ट, बट द थिंग इज दैट कि अगर ये डिफरेंट डिफरेंट रोज पे या अगर मैं डेटा फ्रेम पे वर्क करूंगा तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हो सकती है जो आपके पास अभी जो लिस्ट है, जो आपने 0 1 2 इंडेक्स की लिस्ट क्रिएट करी है, वो हो सकता है 3 या 4 या 5 में आ जाए। तो वहां पे वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा उस पर। तो इसीलिए मतलब लॉजिक इज करेक्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट लॉजिक इज नॉट करेक्ट, बट द थिंग इज दैट कि वहां पे प्रॉब्लम कर सकता है जहां पे मेरे पास डिफरेंट लिस्ट में और डिफरेंट उसके इंडेक्सेस आ जाएंगे। Okay. बट लॉजिक इज करेक्ट, स्पेशली फॉर दिस वन इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, Okay. Thank you. एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस पार्ट? ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन, इट्स सिंपल। कोड लिखूं या हो जाएगा? हो जाएगा सर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज दैट, ये तो इजी है, ठीक है, you have to just write your way. Again, that pattern is also easy. And the last one, write a Python program to accept the first user and the last name and then getting them printed in the reverse order with the space between first name. ये भी easy है, ये तो हो गया होगा सर last. ये रिवर्स वाला पैटर्न कैसे बनेगा, मतलब स्टार्टिंग वाला तो बन गया। Okay, so let's see. मेरे पास क्या है, मेरा नेम है, सर ये नहीं, which one? This one? हाँ इसका रिवर्स ये तो मैंने क्लास में बताया है, हुआ ही नहीं सर। it's आपने simple. कहा था ना कि जो आपने स्टार्टिंग में ऊपर का बनाया उसका बस नेक्स्ट फॉर लूप लेके उसका रिवर्स कर क्या? दो। तो ये आपके पास पैटर्न है, ठीक है, दिस इज द पैटर्न, दिस वन, हाँ 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आपने इस पैटर्न को ड्रॉ किया, एंड देन एल्स पार्ट में आप इस पैटर्न को फॉर पैटर्न में ऐसे ड्रॉ कर लो, एल्स पार्ट में इस पैटर्न को ड्रॉ कर लो, नीचे पैटर्न को, और क्या करो, जो अब रेंज दोगे अब आप उसे क्या करो, डिडक्ट करते जाओ, यानी 4 सिंपल, और आप उसे क्या करते जाओगे, डिटेक्ट करते जाओगे कहां तक, 1 तक, देन -1 तक आप उसे डिटेक्ट करते जाओ, तो वो उसे क्या करता जाएगा बैकवर्ड में, क्योंकि 4 सबसे पहले 4 वैल्यू होगा तो आप उसे मल्टीप्लाई करोगे, आई 4 होगा स्टार, ये 4 टाइम्स स्टार प्रिंट करेगा, देन 3 टाइम्स करेगा इन द नेक्स्ट साइटेशन, देन 2 करेगा, देन 1 करेगा, इट्स सिंपल, गॉट इट। तो आपको फॉर एल्स लूप इज सिंपल, आपको फॉर में फर्स्ट वाला प्रिंट करेगा, एल्स पार्ट में नीचे वाला प्रिंट करेगा वो, ठीक है। ओके तो सर। करके देखना, तो नहीं होता फिर पूछ लेना, नो बस इजी है। फॉर लूप में आप रेंज कहां से शुरू करोगे, 0 से शुरू करोगे, ठीक है। फॉर पार्ट में आप क्या करोगे, 1 से शुरू करोगे, ठीक है, 1 से किया, देन 1 मल्टीप्लाई आई, सॉरी आई मल्टीप्लाई स्टार, तो सबसे पहले वो 1 हो जाएगा, देन 2 हो जाएगा, देन 3 हो जाएगा, देन 4 हो जाएगा, देन 5, ठीक है। अब 5 पे गया, देन कम टू द पार्ट, क्या करे, एल्स पार्ट पे आ जाए, यानी जैसे ही वो 4 पूरा लूप कंप्लीट होगा तो एल्स पे आ जाएगा, फॉर कंप्लीट हुआ। अब आप शुरू कैसे करोगे, 4 से शुरू करोगे, 4 मल्टीप्लाई, यानी 4 सबसे पहले आई 4 होगा, देन 3 होगा, देन 2 होगा, देन 1 होगा, यू कैन जस्ट प्रिंट योर वे, ठीक है। आपको बस फॉर्मेटिंग करनी है एंड की, ठीक है, वो न्यू लाइन में आपको उसी वे में प्रिंट करता जाएगा, एंड देयर इज अ सेपरेटर व्हिच इज रिलेटेड टू द कॉमा सेपरेटर, so it's simple. Now this is all about loops, and now come to the part which is defining function. Wait, I have to download first.
Yes. There's a first question is easy. Create a function that accepts 3 parameter and check for equality between any 2 of them. Your function should return true if 2 or more than the parameters are equal and false if none of them are equivalent to any of the others. Yes, ये तो हो गया होगा, easy है ये. Yes, yes or no? Yes, sir. नहीं हुआ? हो गया sir. हो गया ना? Great. Easy. ठीक है, it's simple. A exactly equals to B, B exactly equals to C. Then you have to check the condition. अगर नहीं है तो false उसे कर दे. Simple. इसी तरह then 1B 3 values लो A, B, C. A equals to int A, B equals to int B, and there is a third return true instead of false. Then C equals to int C. Simple. True, false check कर लो बस वहाँ पे. तो यानी वो कंडीशन इज दैट कि आपके पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग है, देन यू हैव टू चेक दैट पर्टिकुलर वैल्यू. सेकंड, ओके, क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल called my unique list. It should be empty just to start. Next, create a function that allows you to add things to that list. Anything that passed through this function should add it to my unique unless okay value in the my unique. If the value doesn't exist already, it should be added. And okay, function should return true. If the value that exists, it should not be added, and the function should return false. Great. ये किया. Second ये किया. Again, it's very simple. आपको कुछ करना नहीं है इसमें. किया. सिंपल. आपको फंक्शन बनाने, क्या फंक्शन बनाना है कि आपने एक फंक्शन बनाया, जैसे लेट्स सपोज ऐड यूनिक एलिमेंट्स. ठीक है, एक पहले फंक्शन बना लो. मैंने एक फंक्शन बनाया, सिंपल ऐड यूनिक एलिमेंट्स. दिस इज माय फंक्शन, सिंपल. और क्या करते हैं, एक पहले एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं माय यूनिक करके. Hello. Swadhin, just Sir? wait for a while. Yes. Yes, tell me. नहीं सर, मैंने कोड रन किया है, फर्स्ट पार्ट किया हूँ. देखिए सर, Please mute. Okay, in the list. हाँ, definitely. Good. ठीक है, सबने कर लिया नहीं क्वेश्चन. Great, good. Great. And then it's okay. ठीक है, कर लिया, it's good. Then question number 3. अच्छा, ये वाला भी आप नहीं कर पाओगे, ये नहीं किया होगा है ना, ये अभी नहीं किया होगा. नहीं है, किसी ने किया ये वाला भी क्वेश्चन क्या? No, sir. है ना. हाँ, अभी नहीं, अभी आप नहीं कर पाओगे. अभी मैं आपको ना एक गेम क्रिएट करना सिखाऊंगा विच इज रिलेटेड टू द टिक टैक टो. सो वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, ये कैसे करेंगे. अभी इसे ड्रॉप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को ड्रॉप करते हैं. ठीक है अभी. एंड question number 4, create a function that allows someone to guess the value of any key in the dictionary and find out if they were right or wrong. Their function should accept 2 parameter key and value if the key exists in the dictionary and that value is in the correct value, that the function should return true if all other cases should return false. Okay, great. ये किया ये क्वेश्चन. इट्स ये क्वेश्चन अच्छा है. Yes, sir. ये हो गया. Okay, great. Value in the dictionary. Okay, yeah, definitely. Great, good. Have to check in this way. Great. Now next question is that, okay, define a function that extracts the contact number from any text line. Question number 5 किया, ये तो easy है. Sir, ये थोड़ा सा नहीं सर, ये नहीं ये आया. क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आया. ओके, तो मुझे क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है जो क्या करे, कॉन्टैक्ट नंबर को एक्सट्रैक्ट करे. ठीक है, मेरे पास मेरा लाइन है फॉर एग्जाम्पल करके, और मुझे इसमें से क्या करना है, इंफॉर्मेशन यानी जो मेरे पास डिजिट्स हैं उनको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है बेसिकली. तो लेट्स सी क्या करते हैं. पहले से एक स्ट्रिंग में रख लेते हैं.
मैंने कहा ठीक है a इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ लेट्स सी एक फंक्शन डिफाइन करते हैं हम, मतलब ओके डिफाइन कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। मेरे पास कोई भी टेक्स्ट है, मैं कॉन्टैक्ट नंबर उसमें से डिफाइन करूं एंड कुछ भी, मैंने कहा ओके W, ठीक है। W मीन्स दैट मेरे पास कोई भी मैं उसे स्ट्रिंग्स दूं। अब मैंने कहा ओके मैं इसे क्या करूं, W है तो मेरे पास इसे क्या करते हैं, सबसे पहले स्प्लिट कर लेते हैं, यानी स्प्लिट करने से मेरे पास क्या होगा, वो स्ट्रिंग बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। सारा मेरे पास स्ट्रिंग अलग हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ओके लेट्स सी a डॉट स्प्लिट, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे नंबर्स देखो अलग अलग हो गए ये, ठीक है। मेरे पास नंबर अलग हो गए, तो मैं अब इसे एक्सचेक कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ कि ये स्प्लिट का 0 है वो कॉल है, 1 मी, 2 दिस वन, यानी मेरे पास अगर मुझे पता चल जाए कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। देन 3, लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे होगा, इजी है ये। ओके फॉर I in Yes, sir. str if I starts with 9, great, good Anshita, very good, you can do in this way, definitely great, very good। तो आपने देखा ओके I starts with 9, अगर 9 से स्टार्ट हो रहा है डेफिनेटली यू कैन एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर वैल्यू आल्सो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन आल्सो चेक दैट न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या वो जो वैल्यू है देयर इज अल्फा न्यूमेरिक, आप उससे भी चेक कर सकते हो कि वेदर दिस पर्टिकुलर I इज अल्फा न्यूमेरिक और नॉट, क्योंकि वो आपको पूरा वैल्यू दे देगा, है ना। उसके अंदर कोई भी आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है या नहीं है, तो पूरा आपका वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके दे देगा विच इज 9 1, डेफिनेटली ग्रेट। अभी कर लोगे ये क्वेश्चन एवरीवन, या करूं मैं कोड लिखूं, यस और नो? स्वाधीन print this for I in A, if I no in this way it is not correct। अंशिता का आंसर करेक्ट है, सॉरी अंशिता, you have to just ping your message in the public mode, no need to just write your answer in the private mode so everyone can see your answers also, okay। अभी क्वेश्चन नंबर 5 कर लोगे या फिर मैं बताऊं? हो जाएगा सर। हो जाएगा, सर ठीक है। हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 6 ये किया, क्या करना है, राइट अ फंक्शन टू गेट द स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग वेयर ऑल द occurrences ऑफ इट फर्स्ट char where has been changed, ओके डॉलर, ठीक है। यानी आपके पास प्रोस्पेक्ट है तो सेकंड जो p है वो क्या है, डॉलर से रिप्लेस कर दे, यानी इसकी फर्स्ट p के बाद जितनी बार भी p आए वो उसे डॉलर से क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। आपको सिंपली ये क्रिएट करना है, किया, इट्स सिंपल अगेन। ये हुआ या नहीं? हो गया सर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 किया, 7 तो इजी है। Okay, great, done। Question number 8, write the lyrics are not that poor and the lyrics are poor, okay। If lyrics are good, okay, ठीक है। So means that आपके पास lyrics are not that poor, तो आपका expected result है lyrics are good and lyrics are poor तो poor है। It's simple again, you have to work, then good। Then write a function that tells pertain to index, okay। ये तो हमने किया ही है क्वेश्चन, है ना, अपने क्लास में किया था हमने 9। and define a function that fetch merely domain name where you type user email id, ये तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ ना सबसे, इट्स वेरी वेरी इजी कि आपको बस क्या करना है, फाइंड आउट करना है @ कैरेक्टर पे, देन उसके बाद का डोमेन नेम फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करो, सिंपल फाइंड करो क्या वो कहाँ पे एक @ आ रहा है और वहां से उसके कैरेक्टर को प्लस करके उसके बाद का इंफॉर्मेशन लास्ट तक फैच कर लो, सिंपल। यानी हो गया ना ये क्वेश्चन नंबर 10 एवरीवन। Now, question number 11, write the function that returns if the word data is contained in the input string। Again, ये भी इजी है कि अगर डेटा मेरे पास आ रहा है जस्ट चेक करो डेटा मेरे पास आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसे ट्रू कर दो और नहीं आ रहा है तो, यानी फाइंड करो डेटा को, और अगर फाइंड करने के बाद आपको डेटा मिलता है तो सिंपल
उसे रिटर्न यस कर दो, नहीं तो ठीक है मना कर सकते हो। राइट अ फंक्शन दैट काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डेटा। अगेन इट्स सिंपल, आपको क्या करना है, डेटा को काउंट करना है इसमें, ठीक है। तो आप चेक कर लो, स्ट्रिंग दो, इफ डेटा, और मे बी आप इस तरह से लिख सकते हो, डेटा स्मॉल और कैपिटल इफ है तो रिटर्न यस करो, सिंपल। गॉट इट। अगेन इट्स सिंपल दिस पर्टिकुलर, तो आप काउंट कर सकते हो उसे कितनी बार आपके पास काउंट आ रहा है, देन यू हैव टू क्रिएट दैट काउंटर आल्सो। राइट अ फंक्शन टू फिल्टर आउट द वर्ड्स डोंट स्टार्ट लेटर विद डी। ये भी इजी है, ये तो आप फिल्टर से भी कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डू इफ कंडीशन लगा और देखो उसके 0 इंडेक्स पे डी आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है देन यू हैव टू जस्ट रिमूव दैट वर्ड। And then 14, you are driving a little too fast and the traffic police stops you. You write a function to return one of the three possibilities. Okay, no challan warning and heavy fine. Okay, if your speed is 55 kilometer or less, okay, the result is no challan. Okay, if the speed is between 75 and 70, okay, inclusive warning है, greater than a heavy fine. Okay, अब आपको कंडीशन दिया गया है, if it is health emergency according to the COVID, your speed can be 5 किलोमीटर higher in all cases. यानी अगर कोविड कंडीशन है तो क्या है, 5 किलोमीटर का आपको सिंपली बेनिफिट दिया जा रहा है, यानी आप 5 किलोमीटर ओवर स्पीड कर सकते हो। तो ये तो सिंपल है, किया एवरीवन। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट चेक द कंडीशन, इनपुट कंडीशन दो कि कोविड है या नहीं है। अगर यस है तो उसमें इफ का लूप लिख लो, नो है तो उसमें एल्स पार्ट पे लूप लिख लो, देन यू हैव टू चेक द कंडीशन। आप इस तरह से क्या कर सकते हो, अपनी कंडीशन को चेक कर सकते हो। तो चेक कर लो, क्या बस इनपुट देना है आपको कोविड कंडीशन यस और नो। अगर कोविड कंडीशन है तो ये होगा, एल्स उसे रेंज में डिफाइन कर लो, कौन सी रेंज है उसकी। डिफाइन स्पीड ए एंड बी, ओके, yeah, definitely health emergency, okay, yeah, you can do in this way also, great। So now the next question is that 15, okay, define a function to reverse a given string but the index of any special character in the given string should not change। okay, आपको स्ट्रिंग क्या करना है, रिवर्स करना है, बट स्पेशल कैरेक्टर जहां पे जो इंडेक्स पे है वो वही रहे, वो चेंज नहीं हो। ओके, ये वाला सर ये वाला मैंने नहीं किया है सर, मुझे समझ में नहीं आया सर ये। okay, wait and return, okay, there is a second question, return the given string without a special character within the one function। okay, ये किसने किया, पहले ये बताओ। Sir, it's second part done, but facing difficulty in A part. okay, तो यानी ये क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसका लॉजिक क्या है। लेट्स सपोज मेरा नेम है, ठीक है, ईशा, मैं कह इस पर्टिकुलर नेम में क्या है, मेरे पास स्पेशल कैरेक्टर्स है, ES @ HA @ N #K, ठीक है। यानी सबसे पहले मुझे लॉजिक ये देखना पड़ेगा, क्या जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं अगर उनके इंडेक्सेस मेरे पास आ जाते हैं, यानी ये सॉरी स्पेशल कैरेक्टर है, ये स्पेशल कैरेक्टर है, ये स्पेशल कैरेक्टर है, यानी मेरे पास अगर स्पेशल कैरेक्टर के इंडेक्सेस आ जाते हैं तो मुझे क्या करना है, उसको स्टोर करना है। बाकी सारे स्ट्रिंग्स को मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है, और ये स्पेशल कैरेक्टर जिनके मेरे पास क्या आ गए हैं, इंडेक्सेस आ गए हैं, उनको वहां पे क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है। इट्स सिंपल, यानी मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनके स्पेशल कैरेक्टर के इंडेक्सेस पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी अगर मैं कोई फंक्शन क्रिएट कर भी रहा हूं तो मुझे उसमें देखना पड़ेगा क्या पर्टिकुलर वो जो मेरे पास वैल्यू है, चेक कर सकता हूँ, किससे चेक कर सकता हूँ, इस अल्फा से, क्या वो उसके अंदर कोई अल्फा वैल्यू है या नहीं है, या फिर मैं खुद एक अपना फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, किसके लिए, इसके लिए, इसके इंडेक्सेस फाइंड आउट करने के लिए। यानी मैंने कहा लेट्स सपोज इफ आई इन, एक लिस्ट दिया सारे स्पेशल कैरेक्टर्स का, अगर ये है तो उसके मुझे आई का वैल्यू स्टोर हो जाए, यानी हर एक आइटरेशन पे जाए और चेक करे एंड देन वो स्टोर कराता जाए। या फिर अगर मुझे सिंपल करना है तो मैंने कहा ओके फॉर लेट्स सपोज फॉर आई इन रेंज लेंथ, कोई भी स्ट्रिंग्स ले लिया, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल हमें सेट डिफाइन फंक्शन क्रिएट करना है। मैंने कहा ठीक है
सबसे पहले क्या स्ट्रिंज का यहाँ पे रेंज यानी 0 1 2 3 4 पे जाके वर्क करे, एंड देन मैंने कहा ओके इफ जो मेरा स्ट्रिंज है, ठीक है, लेट सपोज str है मेरा स्ट्रिंज str1, मैंने कहा ठीक है उसके आई पे जाओ और उसके आई पे यानी 0 इंडेक्स पे जाएगा, चेक करो डॉट इस अल्फा। तो ये क्या करेगा, चेक करेगा क्या वो अल्फा है क्या नहीं है, सिंपल आई कंडीशन। अगर वो है तो यहाँ पे एक बी क्रिएट कर लेते हैं, तो बी डॉट अपेंड क्या करे, अपेंड आई को अपेंड कर दें, सिंपल। तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पास, कैरेक्टर्स आ जाएंगे इसके 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 इसके, है ना, क्योंकि अल्फा चेक कर रहे हो आप, तो वो यानी आपको क्या करेगा, इनके अल्फा के वैल्यूज आपको अपेंड कर देगा। नाउ कम टू द पार्ट, अब आपको किस पे वर्क करना है, सिंपल उसके सेकंड इंडेक्सेस पे, यानी अब आप ये देखोगे कि वेदर दीज इंडेक्सेस आर प्रेजेंट इन योर लिस्ट और नॉट, उन्हें वर्क करो और अगेन उनको इंडेक्सेस को रिटर्न कराते जाओ। यानी आपने क्या किया, इन इंडेक्सेस पे वर्क किया इस तरह, एंड देन आपने उसके इंडेक्सेस को क्रिएट कर लिया, यानी एक आपके पास इंडेक्स बन बी के इंडेक्सेस आ गए सबसे पहले, यानी ई एस मेरे पास जो एच है, ए है, एन है, के है, इनके इंडेक्सेस मेरे पास क्रिएट हो जाएंगे। किस में क्रिएट हो जाएंगे, सिंपल बी में। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इनकी जो स्ट्रिंज है, जो मैंने अपना स्ट्रिंज दिया है, उसी स्ट्रिंज को मुझे दोबारा से अपेंड करना है, यानी किस ऑर्डर में अपेंड करना है, उसकी रिवर्स ऑर्डर में अपेंड करना है। तो मैं उसे क्या करूंगा, अपने रिवर्स ऑर्डर में अपेंड करूंगा, एंड देन आई कैन जस्ट क्रिएट दैट वे कि मैं इसे सिंपल इस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ। यानी अगर मैं चाहूँ तो अपना खुद का एक फंक्शन क्रिएट करके उसे वर्क भी कर सकता हूँ और उसको रिवर्स करा सकता हूँ अपनी लिस्ट में, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, इस जैसे लेट सपोज ई एस एच, तो मुझे पहले इन्हें अलग तो करना पड़ेगा, ठीक है, एट द रेट एंड सॉरी ई दिस वन एच ए डॉलर एन हैश एन के, मुझे इन्हें अलग करके एंड देन आई हैव टू चेक क्या मेरे पास क्या है, किसके इंडेक्सेस क्या हैं, और उनको सिंपली मैं क्या करता जाऊं, अपेंड करता जाऊं। और जब अपेंड करता जाऊंगा तो मेरे पास क्या करेगा, वो मेरे लेटर्स मुझे देता जाएगा मेरी किस में, एक न्यू लिस्ट में, और फिर उसे मैं रिवर्स ऑर्डर में अपेंड करा लूंगा जो उनके मेरे पास लेटर्स है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जो लेटर्स हैं वो क्या है, सेम इंडेक्सेस पे रहेंगे। बाकी मेरे वो लेटर्स मुझे चाहिए जो कैसे हैं मेरे पास, मेरे अल्फाबेट्स हैं, तो मैं उन अल्फाबेट्स के हेल्प से उन्हें क्या कर सकता हूँ, अपेंड करा सकता हूँ। गॉट इट, लॉजिक समझ में आया, क्या करना है आपको, यस और नो? अच्छा क्या इसके अंदर ये है कि जैसे मान लो एस को मुझे दूसरी तरफ भेजना है, ठीक है, तो अगर क्या मेरा एस क्या करना है, एस एस है ना, ई एस एस, जो एस है वो मुझे सेकंड लास्ट में आना चाहिए, बट सेकंड लास्ट में हैश है, तो अब जो एस का इंडेक्स होगा वो हैश के एक पहले आ जाएगा। अभी तो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या है, ई एस एच ए एन के, ये मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है, इसके बीच में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स एट द रेट एंड देन ई एस सॉरी इस डॉलर एंड देन हैशटैग, ये मेरे पास क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, सिंपल ये वाले। यानी अगर मुझे इनकी इंडेक्सेस विच इज 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी मेरे पास 2 5 एंड 7 ये इंडेक्सेस आ गए, यानी ये इनकी पोजीशन फिक्स हो गई, किनकी, स्पेशल कैरेक्टर्स की पोजीशन। ये मुझे जब मैं स्ट्रिंग को रिवर्स करूंगा, ठीक है, तो मैं जब ज्वाइन कर रहा हूँ अपने स्ट्रिंग को, तो ये 2 5 7 पे मुझे क्या है, मेरे स्पेशल कैरेक्टर्स ही रहेंगे, वो मेरे पास रिवर्स नहीं होंगे। इन्हें मैं क्या करूंगा, रिवर्स ऑर्डर में पहले क्रिएट करूंगा, यानी के देन एन देन ए देन एच देन एस देन ई। और जब मैं इन्हें क्रिएट कर रहा हूं तो मैंने कहा ओके ये मेरे पास रिवर्स कर लिया मैंने अपने इन्हें स्ट्रिंग्स को। अब मुझे क्या करना है, ये के एन इज 0 एंड देन 1, सेकंड पे मुझे क्या है एट द रेट, तो मैं एट द रेट को यहाँ पे ज्वाइन करूंगा, देन ए, देन फिर उसके बाद मेरे पास है डॉलर, मैं इसे ऐड करूंगा। तो मीन्स आपके जो
डॉलर साइन है, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर उनके पहले इंडेक्सेस फाइंड आउट कर लो, उन्हें अपेंड करके एक लिस्ट में स्टोर कर लो, एंड देन यू हैव टू रिटर्न योर whatever the string you have given in your question. Then you have to reverse your list, or whatever the string you have given, just reverse it and it's time to join again, but you have to substitute, or not the substitute, I can say you have to insert all the special character at their respective indexes जो आप यहाँ पे वर्क कर रहे थे। तो बस आपको क्या करना है कि उसके जो इंडेक्सेस हैं उनको नहीं छोड़ना है, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर के इंडेक्सेस को नहीं छोड़ना है। अब इसमें प्रॉब्लम मैं बताऊं क्या आएगा, क्योंकि अगर आप इंडेक्स से करोगे, ठीक है, इंडेक्स फाइंड आउट करोगे, तो इंडेक्स तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम कि वो रिपीटेटिव वैल्यूज के लिए वर्क नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो आप खुद का फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, लेट्स सपोज रिवर्स, ये फंक्शन खुद का डिफाइन करो, इसके अंदर आपको पहले अपना भी एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जो क्या करे, सबके इंडेक्सेस दे दे मुझे। यानी आपको अब जैसे हमने ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया था विच इज द डिफाइन इंडेक्सेस ऑफ एनी वैल्यू, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जो ये क्या करेगा, खुद के सबके वैल्यूज देता जाएगा। तो देयर इज अ मीन्स दैट इट्स अ नेस्टेड फंक्शन, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द नेस्टेड फंक्शन। वेट, आई विल शो यू दैट पर्टिकुलर लॉजिक। मैं अभी आपको शो करता हूँ। Is my screen visible? I think no. Wait, I'm just sharing. So let's see here. देखो ये क्या है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर सेम है, ठीक है। If I call it that function, this is the function inside the function, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सेम वर्क कर रहा है, लेकिन जो स्पेशल कैरेक्टर है उनके इंडेक्सेस को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये सेम वर्क है, तो मैंने नेम कॉल किया, देयर इज अ फंक्शन हुज नेम इज कॉल, आई कॉल इट दिस इज माय स्ट्रिंग हेलो, एंड देन यू कैन सी स्ट्रिंग उसने चेंज किया, रिवर्स किया, बट उसके कैरेक्टर्स जो हैं स्पेशल कैरेक्टर्स उनको नहीं किया। अब यहाँ पे क्या था, देयर इज अ वन स्पेशल कैरेक्टर, आई एम चेकिंग फॉर वन स्पेशल कैरेक्टर मैरिली, बट एट द सेम टाइम आई कैन डू कैसे, इफ आई इन एक लिस्ट पास करना पड़ेगा सारे स्पेशल कैरेक्टर का, क्या अगर इनमें से कुछ है तो उसके इंडेक्सेस अपेंड करते जाए। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो यही सेम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखो इंडेक्स आपने क्या किया, इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हो, क्योंकि ये रिपीटेटिव इंडेक्सेस है ना, तो यहाँ पे हो सकते रिपीटेटिव इंडेक्सेस भी हो सकते थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एक फंक्शन डिफाइन करके यहाँ पे एक अपेंड करा रहे हो ए में, तो इसके इंडेक्सेस आ गए आपके किसके, स्पेशल कैरेक्टर के। तो यहाँ पे तो एक था, तो आपने एग्जैक्टली इक्वल्स टू हैश पे कर लिया, बट यहाँ पे कंडीशन क्या देना पड़ेगा आपको, इफ करके, क्या इफ ऑफ आई यानी एल ऑफ आई पे जाओ, इन देखो वहां पे कि ये सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं या नहीं है, जो इस पे जाएगा तो वो जाके चेक करेगा कि ये है तो उसे अपेंड करा दो, फिर दोबारा जाएगा कि ये इसमें लिस्ट में है तो अपेंड करा दो, तो जाएगा और जाके देखेगा अपेंड कराता जाएगा, नहीं रिटर्न ए आपके पास आ जाएगा, है ना। इस फंक्शन के लिए रिटर्न ए आ जाएगा। देन यू हैव टू जस्ट, आपने क्या किया, उसे रिवर्स किया और स्प्लिट किया, रिवर्स करके स्प्लिट किया तो आपके पास वो स्ट्रिंग आ गया। अब यहाँ पे स्प्लिट वन स्पेशल कैरेक्टर, तो देन यू कैन यूज स्प्लिट, बट अगेन आप क्या कर सकते हो, उसे लिस्ट कर सकते हो, यानी जो भी आप क्या करो स्ट्रिंग दो उसे LIST कर दो, ये भी कर सकते हो। तो वो आपको क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में आपके पास एक लिस्ट दे देगा। देन यू हैव टू जस्ट मेक इट योर लूप अगेन, तो आप क्या करोगे, इसे इस तरह से वर्क कर सकते हो, ठीक है। ये आपका खुद का ओन फंक्शन है, देयर इंडेक्स, ये वो वाला फंक्शन है, तो आप उसके हर एक इंडेक्स पे जा रहे हो, वर्क कर रहे हो और आप उसे ज्वाइन करते जा रहे हो। तो देयर इज अ लॉजिक, अगेन इट्स अ इजी लॉजिक बट यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो आप इसे वर्क कर सकते हो, अगेन इसे करके देखना दोबारा से, ठीक है। नहीं होता है तो फिर मैं दोबारा बता दूंगा, इसका आपको कोड दे दूंगा, ठीक है। बट अगेन इट्स इजी, लॉजिक मैंने बता दिया है, ठीक है। लॉजिक अब उसको यूज करो एंड देन यू हैव टू अप्लाई दैट लॉजिक।
Got it? Yes. Anyone having any doubt in this part? ठीक है. Yes. So it's all about the defining function in the loops. अगर मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, कैनवास पे आपके सॉल्यूशन आ जाएगा असाइनमेंट डिफाइनिंग फंक्शन एंड लूप्स का. कुछ क्वेश्चन मिस हो गए तो देन यू कैन डू इट आल्सो. नाउ so what we can do now, should I start new topic or do revision? What's your call? Yes, Akshita, Amit, or you need some time to do revision? क्या चाहते हो? Means it's your call. Maybe if you need some time or if you really willing to just new topic, okay. What about others? Akshita, Amit, new topic, okay. Okay, let's see. Chalo. Wait, I'm just sharing my screen. So there is another topic which is exceptional handling. ठीक है, it's important especially in the case of development. ठीक है, ये आपके डेटा साइंस में वर्क नहीं होता. ये स्पेशली कहाँ वर्क होता है? जब आप डेवलपमेंट फेज पे जाते हो. मतलब लेट्स सपोज इफ यू आर राइटिंग एनी आर्किटेक्चर, देन यू हैव टू डील विद इन दिस एक्सेप्शनल हैंडलिंग. तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्शनल हैंडलिंग को डील करना पड़ता है. यानी जो एरर्स आ रहे हैं क्या हम उनको भी बाईपास कर सकते हैं क्या? हाँ, जो एरर्स आ रहे हैं हम उनको भी बाईपास कर सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एरर्स होते हैं. देयर इज वन एरर व्हिच इज रिलेटेड टू द कंपाइल, लॉजिकल एंड रन टाइम. तो उन एरर्स को देखते हैं. यानी मींस दैट देयर इज अ सिंटेक्स एरर. यानी अगर आपने कोई कोड्स हैं, उन कोड्स को प्रॉपर नहीं किया तो देयर इज अ सिंटेक्स एरर. तो आपको बताएगा क्या, लेट्स सपोज आपने प्रिंट का स्पेलिंग सही नहीं दिया तो देयर इज अ सिंटेक्स, यानी कभी कभी अनडिफाइंड एरर देता है. देयर इज अ रिलेटेड टू दिस वन. देन देयर इज अ लॉजिकल एरर. लॉजिकल एरर मींस दैट लेट्स सपोज आपने कोई रॉन्ग आउटपुट आपके पास आ रहा है. ठीक है, यानी आपने कोई लॉजिक गलत दे दिया तो देयर इज अ लॉजिकल एरर. थर्ड एरर इज दैट रन टाइम एरर. यानी कोई असम्पशंस है. जैसे आपने कहा एक कोड क्रिएट किया और आपने अपने कोड को क्लाइंट को दिया a/b, मीन्स दैट ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा. तो आपने क्या किया? मैंने ये कोड क्रिएट करके दिया है, आप कोई भी टू वैल्यूज का डिवीजन कर सकते हो इस कोड के थ्रू. आपके क्लाइंट ने क्या किया? 5 0, यानी 5 a इक्वल्स टू 5 एंड b को किया 0. तो डेफिनेटली क्या एक असम्पशन है क्या? ये तो 5 नहीं होगा ना, विच इज जीरो डिवीजन एरर. जब आप इसे रन करते हो तो देयर इज अ एरर विच इज रिलेटेड टू जीरो डिवीजन. तो देयर इज अ असम्पशन. यानी अब आप अपने क्लाइंट से ये भी नहीं कह सकते क्या आप जीरो कैसे इंसर्ट कर सकते हो. डेफिनेटली कोई सेंस नहीं है डिनोमिनेटर में जीरो रखने का, बट आप अपने क्लाइंट से नहीं कह सकते. यू हैव टू डिजाइन योर कोड इन दिस वे कि अगर आपका क्लाइंट जीरो भी रखता है तो भी उसे प्रॉब्लम नहीं हो, आगे की लाइंस रन होती रहे. यानी आपने कोई कोड क्रिएट किया और जैसे ही आपके पास एरर आता है तो क्या होता है? आगे की लाइंस रन नहीं करता है. बट आप चाहते हो कि आगे की लाइंस भी रन करता रहे और वो जो एरर आया उसको बाईपास करे, क्योंकि वो काइंड ऑफ एक्सेप्शनल है विच इज अ रन टाइम एरर. तो अगर हमें इस एरर को हैंडल करना है तो हम कैसे हैंडल करते हैं? देयर इज अ ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक. तो लेट्स सी उसको देखते हैं कि उस पर हम कैसे वर्क करते हैं, स्पेशली द आर्किटेक्चर वन. तो लेट्स सी यहाँ पे आप देख सकते हो a/b/5 दिस वन. ठीक है, तो मैं ये कोड को पूरा रन कर रहा हूँ. ठीक है, तो क्या कर रहा है वो? डिवीजन बाय जीरो, यानी एक एरर दे दिया. यानी उसने प्रिंट बाय किया ही नहीं. अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 10 होता, मैंने रन किया, देन देखो उसने कोई भी यानी बाय को प्रिंट किया.
लेकिन अगर वहां पे कोई एक्सेप्शन आ जाता है तो उसने आगे का लाइन को रन नहीं किया, विच इज रियली अ वेरी बिग काइंड ऑफ फॉल्ट व्हेन यू आर जस्ट राइटिंग योर आर्किटेक्चर। ठीक है, जब आप अपना आर्किटेक्चर लिखते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कौन से कोड में या कौन आपके क्लाइंट कौन से पर्टिकुलर आपके कोड में कैसा एक्सेप्शंस क्रिएट कर दे। यू वेट, ठीक है, आपको नहीं पता, यू डोंट नो अबाउट द थिंग्स, मे बी यू आर राइटिंग योर आर्किटेक्चर अकॉर्डिंग टू योर आर्किटेक्चर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, but maybe you don't know about the mindset of your client, he or she can just write anything। Similarly कि B में जीरो का कोई सेंस नहीं होता है, बट आपका क्लाइंट दे सकते हैं जीरो, तो उसने जीरो दिया, तो यानी आपका कोड तो वहीं पे क्या करा, डीबग ही नहीं हो पाया, यानी मींस रन नहीं कर पाया, आप डीबगिंग ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि देयर इज अ प्रॉब्लम। मे बी जब आप आर्किटेक्चर लिखते हो, इट्स नॉट ऑल अबाउट मे बी 1 or 2 लाइंस, इट्स ऑल अबाउट द हंड्रेड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड। ठीक है, जब आप आर्किटेक्चर लिखते हो किसी भी कोड का, तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो अगर मुझे इसको प्रॉब्लम को हैंडल करना है तो मैं कैसे करूंगा, देयर इज अ एक्सेप्शनल हैंडलिंग, मींस दैट देयर इज अ ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा ओके, मैंने इसे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखा और कहा ट्राई प्रिंट ए, ये करो, ठीक है, एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्ट मींस दैट देयर इज अ एक्सेप्शन, मैंने कहा इसे क्या करो, एज एन एक्सेप्शन प्रिंट करो, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। मैंने कहा जीरो कैन नॉट बी यूज्ड टू डिवाइड एनी नंबर, यानी ये प्रिंट भी करे और आगे की लाइन भी प्रिंट करे और ये आपके क्लाइंट को बता भी दे क्या जो आप दे रहे हो विच इज नॉट अ यूजफुल इनपुट। so you have to give that different input if you really want to just give any want to take any output, then you have to give that different input also। तो लेट्स सी, इसको रन करते हैं, यहाँ पे अभी हमने क्या कहा, जीरो। ओके, तो अब जीरो को देखते हैं, डील करते हैं, तो देखो आपके पास अब कोई एरर नहीं आया। ठीक है, तो उसने कहा जीरो कैन नॉट बी, वो शो कर रहा है कि देयर इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग, यानी उसने एक्सेप्ट को हैंडल कर लिया और आगे प्रिंट को भी बाय कर दिया। यानी कोई भी आपको अगर आर्किटेक्चर जब आप लिखते हो और उसमें एक्सेप्शंस डाल देते हो, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस कब हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कि ये मैं कोड लिख रहा हूँ इसमें हो सकता है क्लाइंट जीरो इंसर्ट कर दे या कुछ और भी दे दे, तो मैं इसे डील कर सकता हूँ क्या, हाँ मैं इसे डील कर सकता हूँ। आपने कहा कि एक्सेप्ट ब्लॉक में इसे लॉजिक दे देते हैं, अगर यहाँ पे जीरो दे भी देता है क्लाइंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसे एक्सेप्शन में लेके आगे की लाइंस को रन करता रहेगा। तो उसने रन किया, जीरो कैन नॉट बी यूज्ड एज एक्सेप्शन, आपने एक्सेप्शन ब्लॉक में उसे दे दिया। अगर आप ये लिख रहे हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो ट्राई में ही चला गया। ठीक है, जैसा 2.5 एंड बाय, एक्सेप्ट में कब जाएगा, जब ट्राई का कंडीशन ए वाला जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि वो एरर क्रिएट हो जाएगा, तो वो एक्सेप्ट में जाएगा। इट इज जस्ट अ केस ऑफ इफ एंड एल्स काइंड ऑफ कंडीशन। if condition is satisfied, then no need to worry about the else part, but if your condition not satisfied, then you have to just go for the else part। Similarly, there is a exception, maybe if you are just writing any code and in your code there is an exception, then try block will just pass your exception to the accept block। so there is a block try and accept block। got it, समझ में आ रहा है everyone, able to connect this one, yes or no? ये I am giving that caution to all, this is a part of the development, so let's suppose if you won't able to connect this part, then no need to worry, no need to bother about the things, because it's a part of the again architecture। so generally I can say lead data scientist, not the data scientist। if you are just maybe having that designation or working as a lead data scientist, then definitely you have to write your whole code in the blocks in the architecture, so you have to use that try and accept in every part। but if you are just working as a data scientist primarily, maybe data analyst, maybe just junior data analyst, junior data scientist, then no need to worry about the things in the first instance। definitely no company just maybe is supposing you to just write your code in the try and accept block, because उसके लिए architectures engineers होते हैं, then they have to just because उसका इसीलिए सैलरी भी काफी हाई होता है। Got it? ये समझ में आया everyone? Yes। मैं एक चीज पूछनी थी कि सर जैसे जावा लैंग्वेज होती है तो जावा में वी हैव लर्न ट्राई एंड कैच, तो ये सेम है, बस इसमें सिंटेक्स चेंज है ना कि Yeah, ट्राई और yeah, एक्सेप्ट है ना, definitely, but the thing बाकी तो is सब कुछ yes, सेम है ना। yes, definitely, but in the Java, let's suppose you are working on the Java, then before to just assign any variable, you have to define their class also। यस, but in the Python, no need to worry about the thing, that's why Python is very simple। ओके। ठीक है, तो देयर इज अ ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, कुछ और देखते हैं। ठीक है,
लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, उस एरर को पता करना है। मैंने तो यहाँ पे अभी क्या किया था, प्रिंट किया था 0 कैन नॉट बी यूज्ड टू डिवाइड एनी नंबर। ये मैंने अपना खुद का सिंटेक्स दिया था, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे वो खुद एरर बता दे कि वो एरर कौन सा है। ठीक है, तो लेट्स सी, मैंने कहा इसे हटा देते हैं। ठीक है, ये मैं कोई भी स्ट्रिंग नहीं लिख रहा यहाँ पे। मैंने कहा मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, एरर चाहिए, अगर कोई एरर आता है तो लेट्स सी, मैंने इसे रन किया एंड ये मुझे अब एरर बता रहा है विच इज डिवीजन बाय 0, यानी देयर इज अ एरर इन द कंपाइलर ऑफ द पाइथन विच इज रिलेटेड टू द डिवीजन बाय 0, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक वैल्यू को दे रहे हो जो डिनोमिनेटर में 0 है। तो आप करोगे तो देन आपने क्या किया, एक्सेप्ट एस ई, यानी आपने एक एज मीन्स दैट एलियास, तो आपने कहा कोई भी एक्सेप्शन आ रहा है उसको मैं ई कॉल करूंगा, और वो ई क्या है, विच इज ई, प्रिंट ई, यानी मीन्स दैट वो उसने ई को 0 डिवीजन एरर, क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा था देयर इज अ एरर व्हिच इज रिलेटेड टू 0 डिवीजन, दिस वन। ठीक है, देयर इज अ 0 डिवीजन एरर, तो उसने क्या किया, डिवीजन बाय 0, तो इसीलिए वो आपको शो कर रहा है। यानी ये बेसिकली आपको हेल्प यही करता है कि आपके जो आगे के ब्लॉक्स हैं वो मतलब बेसिकली वो कंटिन्यूटी क्रिएट जो हो रही है वो डिसकंटिन्यू ना हो, यानी वो ब्रेक ना हो वो कंटिन्यूटी। तो आप इसे क्या, देयर इज अ रन टाइम एरर, इस तरह से आप उस ब्लॉक पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज इसे और थोड़ा सा वास्ट करते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, एक फाइल को ओपन किया, ठीक है, देयर इज अ रिसोर्स ओपन, देन प्रिंट a /b एंड रिसोर्स क्लोज, सिंपल। अगर मेरा लूप क्या है, ओपन हो रहा है, ठीक है, तो ओपन करेगा इस पे, प्रिंट a, यानी ये एरर दे दिया, तो एरर दे दिया यानी मेरे पास रिसोर्स क्लोज नहीं हो पाया, किस पे गया, इस पे गया, और फिर उसके बाद रिसोर्स क्लोज करेगा। तो मीन्स दैट ये इस तरह से वर्क करता है, कैसे आपकी फाइल वर्क कर रही है। सो हियर यू कैन सी रिसोर्स ओपन, देन एरर आ रहा है, और फिर उसके बाद आपका रिसोर्स क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि किस तरह से ये वर्क कर रहा होगा। यानी सबसे पहले ये इसने गया यहाँ पे, ये प्रिंट कर देगा, देन यहाँ पे गया तो एरर यहाँ पे आया, यानी इसके बाद वाली लाइन प्रिंट नहीं करी, ये सिंपली कहाँ, एक्सेप्शन में गया, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, और फिर इसके बाद ई पे, देन ई पे गया, एक्सेप्शन दिया, एंड देन प्रिंट क्लोज, यानी अब प्रिंट क्लोज, यानी उसने आगे प्रॉब्लम नहीं किया। अब लेट्स सी, मैंने कहा ओके मैं इसे कोई एक्सेप्शन नहीं दे रहा, टू यानी ट्राई पे जाए, चेक करे, प्रिंट ए बी, और फाइल को क्लोज करे, इट्स सिंपल। तो लेट्स सी, मैंने इसे इस तरह से वर्क किया, तो आपके पास फाइल आया, देयर इज अ प्रिंट ओपन 2.5, एक्सेप्शन पे नहीं गया, क्लोज किया, एंड देयर इज अ नेक्स्ट लाइन इन 80, रिसोर्स क्लोज्ड। तो ये आपके इस तरह से वर्क करते हैं, यानी आपकी एक फाइल को ओपन कर रहा है और फाइल को क्लोज कर रहा है। ट्राई एंड एक्सेप्ट क्या करता है, फाइल को ओपन एंड क्लोज कर रहा है एट द सेम टाइम, आपकी फाइल पे इस तरह से वर्क करता है। देन देयर लॉट्स ऑफ वे आल्सो। आपने कहा कि मेरे पास फाइल ओपन हुआ, एक्सेप्शन है, तो मैं क्या करूं, एक्सेप्शन में ही उसको क्लोज कर दूं। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। तो आपने क्या किया, एक्सेप्शन में ही उसको क्लोज कर दिया अपनी फाइल को, वहां पे ही आपकी फाइल क्लोज हो गई। तो यानी ये इस पे, यानी अब आप कनेक्ट कर सकते हो कि ये फाइल को ब्रेक नहीं कर रहा है बेसिकली, बस इसीलिए क्योंकि जो भी एक्सेप्शन है उसको ये प्रिवेंट करे, उसको ब्रेक ना करे। यस मुस्कान। Sir, I have a question in my mind कि अगर मान लो if there is a condition like I have used an if condition and in that condition I need to divide the number and if that number is there and I need to break that if condition. So अब अगर मैं break लगा दूंगी and if a divide by 0 ये वाला error आ गया, 0 division error, तो फिर मैं exception कैसे लगाऊंगी? ओके, आपने क्या किया, कोई नंबर लिया इफ कंडीशन के संग, ठीक है, और इफ कंडीशन में क्या किया, आपने डिवाइड किया नंबर, जैसे प्राइम नंबर ले लो, ठीक है, अब मेरे ओके को वन वाला एक्सेप्शन है, मान लो कि मैंने 1 से डिवाइड कर दिया गलती से, ओके। तो और तो यू हैव टू चेक फर्स्ट दिस कंडीशन, क्या अगर मेरे पास ये ट्राई है, देन यू हैव टू राइट होल ऑफ योर ब्लॉक इन द एक्सेप्शन पार्ट। अगर ट्राई मीन्स दैट आपने देयर इज अ ब्लॉक, आपने क्या किया, ओके, फॉर आई इन रेंज लेट्स सपोज 1 to 101, ठीक है, आपने ये किया, और आपने अब कंडीशन चेक नहीं किया, आपने 1 से ही स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इफ कंडीशन चेक नहीं किया, क्योंकि अगर इफ कंडीशन चेक कर लेते तो ठीक है, आपके पास वो कंडीशन है ही नहीं, तो आपने क्या किया, उसे ट्राई किया। ट्राई मीन्स दैट क्या आपने एक लूप लिखा,
अगर इस लूप में जाओ, ये अगर कर रहा है, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। वन कंडीशन, वो आपको वन पे क्या करेगा, एरर नहीं देगा इन द केस ऑफ द प्राइम, क्योंकि वो प्राइम नंबर को देता जाएगा। इट इज नॉट असेप्शन। असेप्शन कब आएगा, जब आप उसे कुछ ऐसा दोगे जहां पे उसे एरर मिलेगा, जैसे जीरो डिवीजन एरर मिल गया, या आपके पास में भी कुछ सिंटेक्स एरर मिल गया, कुछ इस तरह के एरर मिल जाएंगे तो आप उसे दोगे। लेट्स सपोज हमने माना कि वन जो है इसके लिए असेप्शन है मेरे केस के लिए, तो मैंने उसे ट्राई कंडीशन में क्या किया, कंडीशन दिया कि मेरे पास ट्राई में जाओ और इसे चेक करो कि वेदर दिस पर्टिकुलर केस इज द एरर और नॉट। अगर वो एरर नहीं है तो वो इस ब्लॉक पे वर्क करेगा। अगर वो वन जो है, देयर इज अ वन कंडीशन, वन अगर असेप्शन है, यानी अगर किसी से डिवाइडेड बाय वन हो जाता है, तो वो एक एरर, कंपाइलर एरर देता है, आपके एरर से नहीं है। यू कैन नॉट डिफाइन योर एरर्स, कंपाइलर विल डिफाइन के वेदर दिस इज एरर और नॉट, इट इज अ रन टाइम एरर और नॉट। अगर वो रन टाइम एरर है तो जस्ट गो टू द असेप ब्लॉक, असेप ब्लॉक में जाओ और उसे बता दो देयर इज अ रन टाइम एरर, एंड फिर इसके नीचे दोबारा से आप अपना कोड लिख सकते हो। यानी आप उसे दोबारा से उसे बोल सकते हो कि यू हैव टू जस्ट surpass or maybe whatever the logic you have given in the accept block, then you have to pass it that particular logic। तो वहां पे वो क्या करेगा, उस लॉजिक को पास कर देगा। बट अगेन इन द प्राइम कंडीशन वन इज नॉट एन एक्सेप्शन, you have to use that try and accept whether compiler kind of exception will be coming in your picture। तो आपको वहां पे यूज करना पड़ेगा जहां पे आपके पास वो एरर्स आएंगे बाय द कंपाइलर, नॉट डिफाइंड बाय यू। तो आपको अगर डिफाइंड बाय यू मीन्स दैट इफ, यानी ये आपके पास है, यू कैन रेगुलेट इट, you can regulate it by your own by the help of nested condition, but I am talking about the exception handling those error which is not in your hand, it is in the case of the compiler। if the compiler gets the error means that वो आपके, आप उसे रेगुलेट नहीं कर सकते। तो वो रेगुलेट आप कैसे कर सकते हो, बाय द ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। तो वहां पे आपको ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक करना पड़ेगा। तो वहां पे अगर आप ये कर सकते हो, लेट्स सपोज इफ यू आर स्टार्टिंग योर रेंज फ्रॉम जीरो, है ना, अगर आप वहां पे क्या कर रहे हो, रेंज स्टार्ट कर रहे हो जीरो से, तो आप ये क्या है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो मींस दैट देयर इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग। क्योंकि अगर आई मॉड्यूलो ऑफ जे होता है, ठीक है, तो देयर इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्योंकि जीरो आएगा। तो देन यू हैव टू राइट दैट पर्टिकुलर कोड के ट्राई एंड एक्सेप्ट। क्या आपने कहा कि ओके ट्राई करो एंड देन यू हैव टू गो इन द एक्सेप्ट पार्ट और एक्सेप्ट पार्ट में उसको वर्क करो। तो अब जब एक्सेप्ट पार्ट है तो फिर यहाँ पे आपको अपना लॉजिक लिखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपका क्लाइंट तो जीरो से शुरू कर दे। आपने तो कहा कि ठीक है यू हैव टू डिफाइन दैट पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये मैंने बताया था कि अगर आपको, अब आपके क्लाइंट ने इसे जीरो से शुरू कर दिया तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या उसने जीरो से शुरू कर दिया, देन यू कैन राइट योर होल कोड इन द ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। तो आप अपना लॉजिक दोगे कि अगर ऐसा है, अगर जीरो पे है, ठीक है, तो मैं उसे कंडीशन को क्रिएट कर लूं, और नहीं तो मैं ऐसे। अगेन अगर वो एरर आता है आपके पास विच इज जीरो डिवीजन एरर, तो ठीक है, अगर आप चाहो तो उसे खुद अपना कंडीशन दे सकते हो प्राइम नंबर्स के लिए, इफ आई इज ग्रेटर देन 1 तो ये वाला लूप वर्क करे, नहीं है तो फिर ये वाला लूप वर्क करे। तो इट्स अ केस ऑफ द आर्किटेक्चर मैरिली, इट इज नॉट द केस कि ऐसा नहीं कि अगर ट्राई एक्सेप्ट पे वर्क नहीं करोगे तो आप अपना कोड क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं। तो सर फिर ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ जाएगी? मान लो मेरा एक कोड है जिसमें मैंने यूजर से ए भी ले लिया बी भी ले लिया एंड मान लो उसने गलती से बी में 0 डाल दिया और मैंने अपना कोड ऐसे लिखा हुआ है कि ए डिवाइड बाय बी और नीचे ब्रेक, ठीक है। अब अगर मैंने ट्राई वाले में ए डिवाइड बाय बी कर दिया तो मैं ब्रेक जो है वो मेरा एक्सेप्ट में जाएगा। नो, एक्सेप्ट मींस दैट क्या है, जब आपका एक्सेप्शन आता है, लेट्स सपोज आपने कहा फॉर आई इन रेंज एंड 0 to 10, लेट्स सपोज आपने कहा फॉर आई इन रेंज इन 0 to 10, तो आई सबसे पहले क्या हुआ, 0 हुआ इन दिस केस, ठीक है। आपने कहा ओके फॉर जे इन रेंज दिस वन 2 to i, ठीक है, क्योंकि अब आप प्राइम का कंडीशन चेक कर रहे हो। ये सबसे पहले 2 to i किया, यानी ये अपने आप में ये एम्प्टी हो गया और आपने इसे यहाँ पे ब्रेक कर दिया। यानी मीन से दैट जो आप कंडीशन क्रिएट करो वो तो ऑलरेडी अपने आप में ब्रेक हो चुका है। क्योंकि इसलिए ब्रेक हो चुका है क्योंकि ये लॉजिक आपका यहाँ पे ही खत्म हो गया है। क्योंकि इसलिए खत्म हो गया क्योंकि आप चेक ही वहां से करना चाह रहे हो जहां से ये कंडीशन शुरू हो रही है।
विच इज मे बी इन द केस, क्योंकि आप इसके बाद क्या करोगे, इफ आई मॉड्यूल ऑफ जे एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, ये आपने, क्योंकि ये आपकी सेल्फ डिफाइंड कंडीशंस हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज दैट जहां आपको पता नहीं है, कुछ ऐसी कंडीशन आ गई, जैसे लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ, कोई डेटा है, जैसे कॉल मी टेक्स्ट था, ठीक है। अब इस डेटा के अंदर, नॉट दिस वन, आपके पास कोई डेटा है, अपार्टमेंट का डेटा है, एंड अपार्टमेंट मीन्स दैट देयर इज अ रूम, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ डेटा था जो 2, 3 रूम्स इस तरह होंगे अपार्टमेंट में, लेकिन कभी कभी कुछ डेटा ऐसा रहता है BHK, 3 BHK, ठीक है। तो अगर मेरे पास क्लाइंट के पास 2 BHK 3 BHK डेटा आता था, तो मुझे जब आर्किटेक्चर मुझे लिखना है, वो सिर्फ इसके लिए नहीं लिखना है। अगर इस तरह का आ जाता है तो मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा अब जैसे ही मैं उसे क्या करूंगा, इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो ये तो क्या करेगा, एक्सेप्शन है मेरे पाइथन के लिए, क्योंकि मैं इसे क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, मैं इसे सब्सक्रिप्ट कर सकता हूँ, इसको सब्सक्रिप्ट नहीं कर सकता हूँ, दिस इज इंटीजर। तो अगेन ये मेरे लिए कुछ ना कुछ एरर डिफाइंड करेगा। तो मीन्स दैट यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, ट्राई एंड एक्सेप्ट में कर सकता हूँ। अगर मेरे पास लेट्स सपोज मैं आइट्रेट कर रहा हूँ, ये कुछ भी कर रहा हूँ, मैंने इसे कहा ओके स्क्वायर फीट पर रूम है 100, मुझे इसे एक फीचर क्रिएट करना है, ठीक है। टोटल स्क्वायर फीट कितना हुआ, तो विच इज 200, विच इज 300, एंड ये BHK है, तो ये तो यहाँ पे अगर 100 है, ये इसे मल्टीप्लाई नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो ये 2 BHK 100 टाइम्स कर देगा। तो मुझे अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ आइट्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा ब्लॉक में मैंने कहा क्या, फॉर आई इन रूम्स में जाओ, ओके, अगर वहां पे क्या है, टाइप ऑफ आई इंट है, ठीक है, तो करते जाओ, और अगर वहां पे इंट नहीं है तो वो क्या करो, एक्सेप्शन पे उसे दो, एक्सेप्शन SE, और उसके नीचे आप अपना कोड लिखो। क्या वहां पे अगर एक्सेप्शन SE आपको पता चलेगा क्या ये क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप है, तो ऑब्जेक्ट टाइप है, तो इसका क्या करो, 0 वैल्यू को फैच करो, एंड देन 0 वैल्यू को फैच करने के बाद इसे इंट में कन्वर्ट करो, और फिर इसके बाद इसे स्क्वायर से, स्क्वायर एरिया से मल्टीप्लाई करो, तब ये आपके पास यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द वे कि आप इसे इस तरह, जब आपके पास कुछ ऐसे असम्पशंस आते हैं जो आपको खुद प्री डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट प्री डिफाइंड, कि उसको एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 BHK 3 BHK इस तरह से आ सकता है आपके पास डेटा, देन यू हैव टू राइट योर आर्किटेक्चर इन दिस वे। अब प्राइम में क्या है, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कंडीशन के, मेरे पास I and J है कि मुझे 2 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब 2 से स्टार्ट किया तो वो एम्प्टी है, तो अपने आप में ब्रेक हो गया, दोबारा से फॉर लूप पे गया, तो वहां पे कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग है ही नहीं, देयर इज नो एक्सेप्शन हैंडलिंग इन द केस ऑफ द प्राइम वैल्यूज। और अगर आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यूज आते हैं जहां पे हम कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, जहां पे हमें एरर्स आने के चांसेस हैं, वहां पे हम ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करते हैं कि मेरे पास ट्राई क्या है, आप ये करो, जो वॉट एवर द लॉजिक यू आर जस्ट गिविंग मे बी इन द ट्राई ब्लॉक, जो आप चाहते हो वो ट्राई ब्लॉक में लिखोगे। अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्ट उसे एक्सेप्शन SE ऐसे करो, E एरर आ जाए, और उसका फिर वहां पे आप क्या करोगे, सॉल्यूशन दोगे। तो सॉल्यूशन मीन्स दैट कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, A डिवाइडेड बाय जो B है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एक्सेप्शन है, बट इन द आर्किटेक्चर डेफिनेटली यू हैव टू गिव दैट सॉल्यूशन। क्या आप क्या करोगे, वहां पे फिर उस लॉजिक को लिखोगे, जैसे हमने यहाँ पे अभी लॉजिक क्या लिखा, कि मैं वो क्या करेगा, I के 0 इंडेक्स को लेगा, इसको इंट में कन्वर्ट करेगा, एंड देन इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेगा किससे, स्क्वायर फीट एरिया से। दैट्स अ सॉल्यूशन व्हिच इज इन द एक्सेप्शन पार्ट। वो एक्सेप्शन पार्ट में इसे डील कर लेगा, यानी एरर देने की जगह वो वहां पे कुछ और देने की जगह इसे इस तरह से डील कर लेगा। दैट्स अ एक्सेप्ट ब्लॉक, क्योंकि ये ट्राई में नहीं वर्क करेगा, ये एक्सेप्ट में वर्क करेगा। तो जो भी आपको एरर आ रहा है, उसके एरर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आप लिखोगे वो एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखोगे, ट्राई में आप वो लिखोगे जो आपका नॉर्मल लॉजिक होता है। यानी इसके लिए नॉर्मल लॉजिक है 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर फीट, 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर फीट, दिस इज योर नॉर्मल लॉजिक। गॉट इट मुस्कान? So this is, मैं एक कोड लिख ली थी, तो मैं आपको भेजती हूँ, आप अपने आगे कंटिन्यू करो। so this is the way you just do your things, ठीक है। So there's a exception and there's a finally means that final block, you can just write your logic in the final block also. Exception है, then you can just close your file, ठीक है। तो आपने फाइल क्लोज किया, तो फाइनली के अंदर जैसे if else और elif करके होते हैं, तो इस तरह से this is the if else and elif condition,
इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने इन एरर्स को हैंडल कर सकते हो एंड देन यू कैन गिव दैट नंबर। तो यहाँ पे प्रिंट इनपुट सी है तो आप इनपुट कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, इन दिस वे। आपके पास अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास नंबर कैसा आ गया, स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, जैसा नंबर मैंने इसे रन किया इस नंबर को, तो क्या करे, समथिंग इज फिशी अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, यानी दिस इज द एरर। अगर मैं क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम है ना, क्योंकि यहाँ पे अब जीरो डिवीजन एरर नहीं है। उन्होंने क्या किया, वैल्यू दिया, तो अनसपोर्टेड टाइप, देयर इज अ टाइप एरर अनसपोर्टेड इंट एंड द str एरर, ठीक है, इट्स सिंपल। तो मैंने कहा ओके, इसे क्या करो, सिंपल इस तरह से मेरे वैल्यूज को दो। मैं कहा ओके, जीरो डिवीजन एरर, कि ये जीरो डिवीजन एरर है क्या, ये एक्सेप्ट पे गया, नहीं ये जीरो डिवीजन एरर तो नहीं है, ठीक है। इट्स अ वैल्यू एरर, कि ये वैल्यू एरर है क्या, इट्स अ एक्सेप्शन, कि ये कोई एक्सेप्शन है क्या, तो आपको एक्सेप्शन दे देगा कि देयर इज अ एक्सेप्शन, एंड फाइनली आपका क्लोज हो गया। तो यानी आपको अपना जो आर्किटेक्चर उसे फाइनली आपने रन किया और उसे क्लोज किया, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से आपकी वैल्यूज को शो करता है, यानी आपके एक्सेप्शन है तो इस तरह से आपके डेटा को देगा, जीरो कैन नॉट बी यूज। तो अगर वो स्ट्रिंग है तो उसने क्या किया, 5 डिवाइडेड बाय a, तो विच इज नॉट रिलेटेड टू द जीरो डिवीजन एरर। उसने जीरो डिवीजन एरर को आपको हैंडल करना सिखाया कि अनऑपरेंट टाइप जो मेरा डेटा है उसको, लेट्स सी यहाँ पे आपने क्या किया, देयर आई कैन से 5, ठीक है, आपने सिंपल ये दिया, इसे वैल्यू दिया, एंड देन देयर एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पे गया ओके, आपने चेक किया कि ये जीरो डिवीजन एरर है क्या, नहीं ये जीरो डिवीजन एरर नहीं है। देयर वैल्यू एरर, यानी इनपुट आपने गलत दे दिया, इनवैलिड इनपुट दे दिया, नहीं वो भी नहीं है। एंड देयर इज एरर विच इज रिलेटेड टू द फिशी पार्ट, यानी आपने कहा ओके, क्या हम इसे ऐसे कर सकते हैं, देन बी इंट एंड देन इंट ऑफ, क्या करो, इसे स्टोर कर लेते हैं किसमें, सी में स्टोर कर लेते हैं। एंड देन ये अगर ऐसा आ रहा है विच इज असप्शन पार्ट, तो ये क्या करे, इसे इंट में कन्वर्ट करे, ठीक है। एंड देन इंट में कन्वर्ट करने के बाद सिंपल इसे क्या करे, रिलेटेड टू वैल्यू, और आपने कहा कि फिर ये से a डिवाइडेड बाय c करे, इट्स सिंपल। आपने इस तरह से इसे क्वेश्चन को दिया, एंड देन यानी अब आप देख लो, दिस इज समथिंग फिशी अनसपोर्टेड, यानी वो आपको क्या कह रहा है, मेरे पास जो एरर है विच इज इन द एक्सेप्ट ब्लॉक, इन दिस एक्सेप्ट ये पार्ट, यानी उसने कहा कि यहाँ पे ये प्रिंट जो एक्सेप्शन है वो क्या है, यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, यानी मीन्स दैट ये इस एक्सेप्शन ब्लॉक में ही वर्क कर रहा है सर। यानी अगर मुझे इसे लॉजिक देना है बेसिकली, वो क्या है, दिस लॉजिक, मैंने कहा उसे क्या करो, इंट में कन्वर्ट करो, यानी वट एवर द वैल्यू यू हैव गिवन इन दिस पार्ट, दिस वन, तो उसे वहीं की वहीं उसे हैंडल करना पड़ेगा जब आपको एरर को पता चले। तो एरर मीन्स आपके पास कोई एक्सेप्शन आया, एंड देन यू कैन जस्ट गो इनटू द पार्ट, आपने कहा ओके देयर इज अ फाइनल पार्ट, जस्ट गो इनटू द फाइनल, तो आपने कहा ओके सी इंट, किसे इंट, यानी मेरे बी को, एंड देन आपने कहा ओके देयर इज अ वैल्यू एंड देन a डिवाइडेड बाय c, आपने इस पार्ट को लिया, आपकी फाइल को उसने रिसोर्स को क्लोज किया। अब यहाँ पे आप अपने c को, वेट आई विल जस्ट शो दैट